ओके नाउ क्वाइट प्लीज। बेटा आवाज़ नहीं करें, जो माइक है नहीं, फिर आवाज़ पीछे आएगी नहीं आप। नाउ इन last class we actually are taking here the cardiovascular system unit here, and I told you that cardiovascular system means this is a system that consists of heart and the vessels. Vessels means it will be the arteries, the veins, arterioles, the capillaries. Their structure we will do after the basic structure of the heart. And I told you last time that what is the location of the heart, where it is situated basically. And this heart is situated here in the middle portion of your thoracic cavity. You call it the mediastinum. There is a space between two lungs where all the structures are lying except lungs. And this heart is actually sitting here on the central portion of the diaphragm, but it's not sitting directly on the central part of the diaphragm, the central tendon of diaphragm, but it is enclosed within a pericardium. And we told you that the pericardium is one which is very tough and stiff and strong, thick, fibrous pericardium. And inside the fibrous pericardium there is a double layer serous pericardium, very delicate thin layer, actually double layer, and in between there was a space, you call them the pericardial space, and that pericardial space contains around, you can say, 40 to 50 ml of the pericardial fluid normally. And inside that serous pericardium is actually located your heart in this way, in such a way that very small part of the heart is actually lying on the right side and most of the heart is lying on the left side here. See now, this is the structure of the heart. Now you can see here, ये बड़ा हार्ट इसलिए मंगवाया है अब ताकि ये दूर वालों को नज़र आ जाए। वैसे दूर वाले ख्याल मैंने इनको बड़ा किया है कि इनको नज़र आए, आवाज़ मेरी पहुँचे इन तक, लेकिन उमूमन ये मैंने ख्याल किया है, उनको ये ख्याल नहीं होता है। वो थोड़ी देर बाद, आप 15 मिनट बाद देखें, बिल्कुल आखिरी सीटों वाले सोए हुए होंगे, बीच वाले बातें कर रहे होंगे और उसके आगे वाले फिर उन दोनों ग्रुपों को देख रहे होंगे। बस इस दरवाजे के आसपास जो लोग हैं बस यही क्लास सुनते हैं बाकी, लेकिन फिर भी उम्मीद उनसे यही है कि उनके लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं और ये उनसे थोड़ा फ़ायदा ले लें। ये लेबॉर्ट्री में पड़े हुए हैं, ये दोबारा आपको जाके वहाँ देखने हैं, लेकिन मैं यहाँ समझाऊंगा तो उसके बाद देखने में तुम लोगों को फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करने में आसानी होगी। सी नाउ दिस इज द हार्ट, इट इज़ नाउ लोकेटेड एंड सिटिंग नाउ हियर ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो आप देखें डायफ्राम के अंदर ये ऐसे लाए कर रहा है इन सच अ वे दैट इज डायरेक्टेड हियर, इट्स अपेक्स इज डायरेक्टेड टू द लेफ्ट साइड and most of the heart is lying here on the left side. Very small part of the heart, you see right part of the heart is lying on the right here. Only small part will be actually on the midline, on the right of the midline. Some part, you can say only this part, small part. Rest of the heart is lying here on the left side. तो लेफ्ट साइड पर हार्ट का लोड ज़्यादा है, इसलिए कुदरत ने वहाँ पर बैलेंस रखने के लिए लेफ्ट लंग को राइट के मुकाबले में कोई 90 ग्राम्स कम उसको लाइटर रखा है उसको। तो left lung, its weight is around 670 grams in contrast to the right lung whose weight is 900, we say 760 gram. इसका है 670 और इसका है 760। 90 ग्राम्स ये लंग जो है वो ज़्यादा हैवी है लेफ्ट के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इस तरफ हार्ट ज़्यादा है, वज़न इस तरफ ज़्यादा है, तो वज़न को बराबर करने के लिए नेचर ने यहाँ पर इसी तरीके से बैलेंस कर दिया। And now if you are seeing in this heart, we told you that you have to do here the surfaces of the heart, the borders of the heart, 4 chambers of the heart, their internal features, what is actually noted here when each of the chamber will be opened here. अंदर क्या देखेंगे हम लोग, तो आइडिया हो जाएगा हमसे कि ये हार्ट काम कैसे करता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इन वन हार्ट एक्चुअली देयर आर 2 हार्ट्स इन वन हार्ट, राइट हार्ट, left heart. And a right heart, again each heart has 2 chambers. One chamber, you see, it's like a go down where the blood returning to the heart is stored,
and then is the ventricle where this stored blood has to be shifted here, pumped now. तो दोनों साइडों को आपको पता है कि दो दो चेंबर्स होंगे, इसलिए हम हार्ट को 4 चेंबर्ड आर्गन भी कह सकते हैं। लेकिन राइट हार्ट में भी 2 चेंबर, लेफ्ट हार्ट में भी 2 चेंबर। ये दोनों हार्ट्स के जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये एट अ टाइम फंक्शन कर रहे होते हैं और दोनों को फंक्शन एक जैसे होते हैं। आप सिर्फ एक साइड पढ़ लो तो दूसरा साइड भी वैसे ही कर रहा है, फर्क सिर्फ प्रेशर्स का है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि बेसिकली हार्ट को 2 सर्कुलेशंस मेंटेन करनी होती हैं, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अनदर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन which is receiving the oxygenated blood from the lungs and it is pumping it to the rest of you, say it is receiving blood from the lungs को रिसीव करते तक ये पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म है। लेकिन इसको अब शिफ्ट करेंगे कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसको मैं चल के आपको बताता हूँ, वो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है। अब यहाँ पर आप देखें ये हार्ट है इस वक्त आपके हाथ में, ये इस फ्रेम में आ रहा है ना ये। Understand? So, if you see this surface, I told you last time this surface because it is facing your sternum and the ribs, under the cover of the ribs and the sternum, that's why this is called sternocostal surface. You call it sternocostal surface. तो ये sternocostal surface है। And then heart is pressed against the diaphragm. तो ये जो सरफेस मैं आपको दिखा रहा हूं ये डायफ्राम को टच कर रहा है, वो डायफ्राम के साथ प्रेस्ड है, सेंट्रल टर्नल डायफ्राम के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको हम इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं एंड डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। आप अगर इन दोनों सरफेसेस को छुपा देंगे तो हार्ट खत्म नहीं हो गई है। हार्ट का एक सरफेस ये भी है, इस सरफेस को हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि अब हार्ट एक ट्रायंगल बन गया है। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि अपेक्स इस जगह से मैं अगर कोई नीडल पास कर दूं तो ये नीडल मेरे पोस्टीरियर सरफेस से आके निकलेगा। भाई यहाँ से अगर आप यहाँ से खंजर पास करें तो कहाँ आके निकलेगा? क्या इंटीरियर से, इंफीरियर से या पोस्टीरियर से? तो इसका मकसद है कि अपेक्स किसके अपोजिट में है? तो ट्राइंगल में अपेक्स के अपोजिट वाले सरफेस को बेस भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेस आल्सो। तो इट हैज 3 सरफेसेस, sternocostal, inferior or diaphragmatic, anterior or sternocostal, inferior or diaphragmatic, posterior or base। 3 surfaces heart के हैं। And in these 3 surfaces we have now 3 borders also। आप यहाँ से देख सकते हो, एक है ये राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, एक है ये इसका inferior बॉर्डर, और एक है इसका ये लेफ्ट बॉर्डर जो ऑब्लिकली आ रहा है यहां से। सुपीरियर बॉर्डर इसका है नहीं, बताया लास्ट टाइम मैंने आपको कि यहां से ग्रेट वेसल्स निकल रही हैं, तो यू डोंट हैव एनी बॉर्डर हियर। तो यहां आपको मिल गए क्या? 3 बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस। अब यहां पर आप देखो कि जहां जहां आपको ये मस्कुलेचर की ये लाइनें नजर आ रही हैं जहां पर, अब देखें आपको हार्ट में 2 रीजन्स दूर से ही नजर आ रहे होंगे जिनके कलर चेंज किए हैं इन्होंने। ये देखें आपको ये मसल की तरह ये गोश्त नजर आ रहा है सारा, यहां तक भी, ये हर जगह जहां जहां से आप ये देख रहे हो, जिस जगह पे भी ये चीजें नजर आ जाए ना तो ये समझ लेना कि ये वेंट्रिकल दिखाया है। क्या? तो एक होगा वेंट्रिकल के 2 होंगे, जाहिर है 2 होंगे, तो ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं। अब हमें फिलहाल नहीं पता कि विच पार्ट इज राइट वेंट्रिकल एंड विच पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हम अंदर से निकाल के देखेंगे तो दीवार पाएंगे, अंदर एक घर है, बाहर से देखेंगे एक ही घर, अंदर से जाके देखेंगे कि 2 भाई रह रहे हैं, उन्होंने बीच में दीवार खड़ी कर दी है, वो बाहर से ऐसा नजर ही नहीं आता। तो यहां पे भी ऐसा ही है, वेंट्रिकल एक था, एक है, लगे एक रहा है, अंदर से जाके देखेंगे तो वो दीवार है। सेप्टम है किसके बीच में? 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए उसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये कहां पाएंगे? जहां ये मस्कुलेचर देख रहे हैं, शक्ल देखें आप, इनकी कंसिस्टेंसी और इनकी अपीयरेंस देखें। अब से अपीयरेंस तो फिर दूसरा एट्रियम किधर है? जहां ये तुम स्मूथ देख रहे हो ना, स्मूथ ये पिंक कलर का, हर जगह जहां से ये सा देखो ये एट्रियम है। क्या है ये? तो जिस जगह से तुम ये पिंक वगैरह नजर आ रहा है, जहां से, अब देखें जहां से आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये दिखाएं, ये पूरा यहां तक ये टुकड़ा, ये सारा क्या है? एट्रियम।
क्या एट्रियम सिर्फ तुम्हें फ्रंट से नजर आ रहा है कि बैक से जा देखोगे तो भी एट्रियम है? ये और बात है कि इंफीरियर साइड से देखोगे तो एट्रियम यहां नहीं है। देखो अगर मैं इसको ऐसे छुपा दूं यहां, तो इंफीरियर साइड से क्या मुझे नजर आ रहा है क्या एट्रियम? तो वहां क्या नजर आ रहा है? वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? दोनों ही वेंट्रिकल होंगे जाहिर है। हमें नहीं पता कि राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, वो तो हम देख लेंगे बाद में जब हम उसकी बीच में पार्टीशन देखेंगे। और ये जो आप देख रहे हो हर जगह से, स्टेनोकास्टल सरफेस से भी, पोस्टीरियर सरफेस से भी, और स्टेनोकास्टल से तो इस तरफ से भी थोड़ा सा देख रहे हैं। कलर देख रहे हैं ना आप, ये वाला कलर जो है ना, ये कलर, ये कलर जहां नजर आ जाए ये एट्रियम है मेरी तरफ से। कौन सा एट्रियम? राइट के लेफ्ट? राइट के लेफ्ट? दोनों। गुड, शाबाश, दोनों। तो दोनों तो मुझे तो यहां नहीं पता चल रहा है कि कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट, पता नहीं चल रहा है यहां पर। हम जब इसको निकालेंगे, जब इसको खोलेंगे तो अंदर मुझे एक पार्टीशन नजर आएगी, एक सेप्टम नजर आएगा जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक राइट एट्रियम एक लेफ्ट एट्रियम। इसलिए उस सेप्टम का नाम पड़ेगा इंटर एट्रियल सेप्टम। जैसे वेंट्रिकल का सेप्टम था उसका नाम था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो एट्रियम के सेप्टम का नाम होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रिया को राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट कर देगा, जुदा कर देगा। हम राइट और लेफ्ट में हार्ट को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि बर्थ के बाद जब पहली सांस बच्चा लेगा तो अब एक साइड पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, दूसरे साइड पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये ब्लड कभी आपस में मिलेगा नहीं। हार्ट सेम है, एक साइड पे आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, एक साइड पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो इन दोनों ब्लड्स को हमें मिलाना नहीं है। तो जो दो एट्रिया हैं उसमें से एक राइट है एक लेफ्ट है। लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट होता है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वहीं से पंप होता है, और राइट वाला जो होता है वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और पंप होता है। तो इसका मकसद है कि एट ए टाइम मेरे दोनों एट्रिया में ब्लड मौजूद होता है। राइट एट्रियम में मौजूद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां से आया होगा? गंदा ब्लड कहां से? पूरे बॉडी से गंदगियां लेके पहुंच गया है। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। कहां से आया होगा? लंग्स से, जो साफ होके आ गया। ये दोनों गोदाम है हमारे, दोनों जगह पे पड़ रहा है, साइमल्टेनियसली आता है, उधर से भी आ गया इधर से भी आ गया, आता रहे, कोई मसला नहीं है। बीच में पार्टीशन है, एक ड्रॉप भी आपस में मिल नहीं पाएगा क्योंकि बीच में है इंटरएट्रियल सेप्टम। क्या आ जाएगा कि इसको शिफ्ट होना होगा वेंट्रिकल्स की तरफ, तो राइट वाला शिफ्ट करेगा एट्रियम वाला किस वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऐसे तो नहीं करेगा जब तक इस बीच में कोई सुराख, कोई ओपनिंग नहीं होगी। आप यहां से कॉरिडोर में ऐसे तो नहीं जा सकते जब तक दरवाजा नहीं होगा, तो आप दरवाजे से चले जाएंगे, तो यहां भी सुराख होगा, वहां से हम चले जाएंगे किसमें? अपने हिस्से के वेंट्रिकल में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा राइट एट्रियम से कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड वाला लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब बारी है असल चीज कि ये सब कुछ जो किया है हमने, अब इसको क्या करना है? अब इसको पंप करना है। और पंप ऐसे नहीं है कि लेफ्ट पहले करेगा राइट बाद में करेगा, दोनों साथ पंप करेंगे। और उधर से भी राइट और लेफ्ट से जो ब्लड आया था, क्या पहले राइट आएगा बाद में लेफ्ट? क्या दोनों साथ आएंगे? क्योंकि हर एक का अपना अपना रास्ता है, कभी भी ये मिलेंगे नहीं। अब वेंट्रिकल में अलग अलग आ गया है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों ब्लड हैं, मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में मैंने एक सेप्टम डाल दिया है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक ड्रॉप भी ब्लड का आपस में मिलेगा नहीं। अब जो दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो हर वेंट्रिकल के आगे दो वेसल्स हैं। राइट वेंट्रिकल के आगे एक ब्लड वेसल है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो वेसल कहां लेके जाएगी ब्लड को साफ होने के लिए? लंग्स की तरफ। इसलिए उस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी कहेंगे, लेकिन आप उसको कहें ट्रंक, है तो आर्टरी, लेकिन आप कहेंगे ट्रंक, क्योंकि निकलने के साथ, क्योंकि लंग्स होते हैं दो, तो क्या ये आर्टरी एक रहेगी कि दो में स्प्लिट हो जाएगी? तो इसलिए, और क्या बाद में बहुत देर के बाद होगी कि फौरन होगी? तो ये क्या होगी? छोटी होगी। छोटी का मकसद है कि शॉर्ट होगी, शॉर्ट भी होगी और वाइडर भी होगी। और ऐसी वेसल्स को आपको पता है कि अगर ऐसी वेसल्स से आर्टरियां हों तो उनको ट्रंक भी कहते हैं। तो हम इसका नाम डालते हैं पल्मोनरी ट्रंक। और पल्मोनरी ट्रंक इमीडिएटली डिवाइड हो जाएगा दो वेसल्स में। एक पल्मोनरी आर्टरी राइट को जाएगी, दूसरी पल्मोनरी आर्टरी, अब आप आर्टरी कह सकते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी एक देखें यहां से चली गई लेफ्ट पर, और एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही है राइट पे। किसकी? इस ट्रंक की। आप ट्रंक की हालत देखें, ये इतनी मोटी, इतना मोटा ट्रंक है, और ये चली गई कहां? लंग्स की तरफ। जहां ये ब्लड पहुंचेगा
तो उधर से आप सांस जो लेंगे तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, यहाँ कम, आपने जो अभी लिया वो ज़्यादा, वो एल्विला में है, वो एल्विला का ब्लड, एल्विला का ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा इसमें, और इसमें जब शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन की लेवल ठीक हो जाएगी और ये फिर वापस साफ होकर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो लेफ्ट हार्ट की तरफ, लेफ्ट एट्रियम में और से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो आगे से ब्लड वेसल है जिसका नाम एओर्टा है। तो एओर्टा आप देख रहे हैं यहाँ से, और एओर्टा इसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। तो हमें यहाँ मिलते हैं 4 चैम्बर्स, इन 4 चैम्बर्स को यहाँ पर हमें देखना है। अब ये जब आपने यहाँ पे देखा ना, ये वेंट्रिकल और ये देखा एट्रियम, यहाँ से दूर से पता चल जाता है जहाँ ये मस्क्यूलेचर है वो वेंट्रिकल है, जहाँ ये स्मूथ है वो एट्रियम है। तो बीच में सल्कस है कि नहीं? क्या ये सल्कस तुम्हें सिर्फ यहाँ नजर आती है, या तुम इंफीरियर से जाओगे तो भी सल्कस जारी है? ठीक है ना? ठीक है, आपको नजर आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है? इसके मॉडल का वीडियो अलग से मैंने शूट किया हुआ है, ये भी मैं आपको सेपरेटली भेज दूंगा। अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पर ये देखें स्टर्नोकास्टल सरफेस पर भी ये सल्कस जारी है, थोड़ा मैंने नीचे किया ऐसे तो ये सल्कस कंटिन्यू है, और करते रहें ये सल्कस राउंडेड है, पूरे हार्ट को सराउंड कर रही है। और जब मैं इस सल्कस पे ऐसे हाथ डालूं तो इसके एक तरफ एट्रियम होगा, दोनों एट्रिया, और दूसरी तरफ वेंट्रिकल्स होंगे, दोनों वेंट्रिकल्स। यानी सरफेस पे मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस तरफ है एट्रियम तो इस तरफ है वेंट्रिकल। फिर एट्रियम कोई भी हो सकता है, वेंट्रिकल कोई भी हो सकता है। इस सल्कस को कहते हैं जो ऐसे क्राउन लाइक है, जैसे ना हेड पे कोई आपको ताज पहना हुआ है, इस सल्कस को वैसे तुम एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस भी कह सकते हो ना, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इस सल्कस का दूसरा नाम प्यार से कोरोनरी सल्कस भी है। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। ये सल्कस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए कोरोनरी सल्कस, ये देखिए यहां से इधर, और एसी में पीछे से खींच के लेके आया इधर से होते हुए यहां, ये बैक में भी होगी। ये देख रहे हैं यहां से, जैसे आपको ये दिखाया, तो ये देखिए ये सल्कस, ये देखिए, और साथ में ये पीछे से लेके गया और वापस यहां लेके आया। तो इस तरफ क्या है? एवरीथिंग इज वेंट्रिकल, और इस तरफ एट्रियम। तो ये सल्कस कहलाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस या कोरोनरी सल्कस। ये तो है, लेकिन जब वेंट्रिकल पे नजर डालेंगे तो ये कौन सा वेंट्रिकल है? दोनों। इन दोनों वेंट्रिकल्स में बाहर से ही, जैसे एक घर होता है, अंदर से पार्टीशन है, बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन यहां फिर भी इशारा मिल जाता है कि वो जो सेप्टम अंदर पड़ा हुआ है ऐसे, उसका इंटीरियर मार्जिन जो है सेप्टम का, जो दीवार है अंदर, इस वेंट्रिकल के अंदर दीवार जो 2 वेंट्रिकल्स में उसको डिवाइड कर देगी ऐसे, तो उसका जो इंटीरियर मार्जिन है ना, वो इस जगह पर होगा, नजर आ रहा होगा, थोड़ी सी डिप्रेशन होगी यहां पर। अगर मैं अंदर डाल दूं ना ऐसे, इसके अंदर डाल के इसको मैं 2 में कर दूं, जैसे केक को हम 2 हिस्सों में कर देते हैं, तो अंदर से जैसे समझ छुरी पड़ी हुई है, अंदर ब्लेड पड़ा हुआ है जो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, वो ऐसे ऑब्लिक है ऐसे। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेप्टम किस जगह है? यहां डिप्रेशन होगी, थोड़ी सी अंदर डाला हुआ होगा, थोड़ा सा सल्कस है, और ये सल्कस का कौन सा मार्जिन होगा? सेप्टम का एंटीरियर मार्जिन। और ये जो इसका पोस्टीरियर मार्जिन होगा वो किस सरफेस को टच करेगा? डायफ्रामेटिक माने पोस्टीरियर सरफेस को, सॉरी इंफीरियर सरफेस को। तो ये जो सल्कस है ना, ये सल्कस ये मुझे बता देगी कि ये है मेरा एक वेंट्रिकल, ये मेरा दूसरा वेंट्रिकल है। और ऐसी सल्कस का सिर्फ यहां होगी कि ये डायफ्रामेटिक पे भी होगी। तो ये यानी ये पार्टीशन ऐसे पड़ी हुई है अंदर। तो इस सल्कस को, ये वाली जो सल्कस है एंटीरियर सरफेस पर, इसको कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। क्या कहेंगे इसको? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और ये जो नीचे है उसको कहेंगे
है भले वो इंफीरियर सरफेस पे, लेकिन क्योंकि ये अपने एंटीरियर के बिल्कुल अपोजिट में है, इसलिए इस सल्कस को हम इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस नहीं कहते, बल्कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। हालांकि ये पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं है, अपने एंटीरियर के अपोजिट में है। सेप्टम ऐसे डाला ना हमने, तो ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। भले वो इंफीरियर सरफेस पर है, इंफीरियर सरफेस पे होने की वजह से उसको इंफीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस नहीं कहते, उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। और ये तो एंटीरियर है ही, तो ये सल्का है यहाँ पर। और ये सल्कस से क्या पता चलता है कि मुझे पता चल जाता है किस तरफ मेरा लेफ्ट है, किस तरफ मेरा राइट है। आप बोले सर ये तो हमें बाहर से पता चल गया, क्या एट्रियम में भी हमें कोई बाहर से पता चल सकता है कि जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि ये मेरा राइट एट्रियम, ये मेरा राइट वेंट्रिकल? यहाँ ऐसा नहीं होगा। हालांकि अंदर इंटर एट्रियल सेप्टम है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें बाहर से पता नहीं चलेगा। हालांकि अंदर है, और अंदर तब पता चलेगा जब मैं इसके दरवाजे को खोल के अंदर देखूंगा जाके। सरफेस में मुझे कोई सल्कस नजर नहीं आएगी जिसको लेके मैं अंदाजा लगा सकूं कि दिस इज माय राइट एट्रियम एंड दिस इज माय लेफ्ट एट्रियम। ऐसा यहां नहीं होगा। इसको चल के यहां पे देखते हैं। अब देखें, यहां मैं पहले चेंबर को खोलता हूं। कौन सा? राइट एट्रियम से स्टार्ट करते, चलो राइट हार्ट से। ये राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। उसके बाद ये अगर राइट एट्रियम है तो ऐसा ही पिंक के यहां तक पूरा ये राइट एट्रियम, जहां मेरा हाथ है, मैं इसको यहां छुपा के बाकी पिंक जहां भी मुझे नजर आ जाए ना, बाकी पिंक वो यकीनन लेफ्ट एट्रियम होगा। अंदाजा मैं ऐसे ही लगा सकता हूं, क्योंकि बाहर से कोई निशान है नहीं, अंदाजे से, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं करेक्ट हूं। तो यहां से ये हिस्सा पूरा, तो आप कह सकते हो कि मेरा जो राइट एट्रियम है वो किस बॉर्डर, किस सरफेस से ज्यादातर नजर आता है? स्टेनोकास्टल सरफेस से। तो राइट एट्रियम मोस्टली इज प्रेजेंट ऑन स्टेनोकास्टल सरफेस। और बॉर्डर्स के हिसाब से ये कौन सा बॉर्डर बनाता है? राइट बॉर्डर। यानी आप एक एक चेंबर देखते जाओ और ये भी देखते जाओ कि ये चेंबर कौन से सरफेस पर मौजूद है, यानी किस सरफेस में कंट्रीब्यूट करता है और किस बॉर्डर में कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि सरफेसेस 3 हैं, बॉर्डर्स भी 3 हैं, चेंबर 4 हैं। अब जो पहला चेंबर है जिसको अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, वो ये है। मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूं ऐसे, अगर ऐसे मैंने हाथ लगाया तो कौन से सरफेस पर ये मौजूद है? स्टेनोकास्टल पे, इंटीरियर सरफेस पे। क्या पूरा इंटीरियर सरफेस? नहीं, इंटीरियर सरफेस और भी बहुत कुछ है। तो ये इंटीरियर सरफेस का ऑलमोस्ट 30% ये ऑक्यूपाई कर रहा है। और बॉर्डर्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? बॉर्डर्स में पूरा का पूरा 100% राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय माय राइट एट्रियम। आप देखें यहां से। और स्टेनोकास्टल सरफेस का कितना? समझ लेके 30%। बाकी 70% कौन? वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? डिपेंड करता है कौन सा। अब ये देख सकते हैं पूरा वेंट्रिकल, लेकिन हमें पता है ना कि ये जो लाइन है यहां पर, ये जो डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जिसे मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे 2 वेंट्रिकल से एंटीरियर सरफेस पे नजर आते हैं। 30% इसने ऑक्यूपाई किया, तो बाकी कितना बचा हुआ था एंटीरियर सरफेस? 70%। इस 70% में कोई 50% विल बी दिस वेंट्रिकल एंड 20% विल बी दिस। आप बोलते ये 2 कैसे? भैया आपको सल्कस जो नजर आ गया, सल्कस से आइडिया मुझे हो गया कि इस तरफ एक वेंट्रिकल है, दूसरी तरफ दूसरा वेंट्रिकल है, क्योंकि इसके सल्कस के नीचे ही तो सेप्टम है। तो ये और ये जो वेंट्रिकल है, क्योंकि ये राइट के करीब है, तो ये कौन सा वेंट्रिकल होगा? राइट वेंट्रिकल। तो यहां का जो ब्लड है किधर से आएगा? पूरे बॉडी से। साफ के खराब? राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, तो खराब। और खराब किधर से आता है? पूरी बॉडी से। पूरी बॉडी से अबव द डायफ्राम सुपीरियर वेना केवा से, बिलो द डायफ्राम इंफीरियर वेना केवा से। ये दोनों तो सही है, उसके बावजूद हार्ट का अपना खराब जो ब्लड होता है उसकी अलग वेसल होती है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो आप देखें ऊपर से आ रहा है किससे? सुपीरियर वेना केवा से। किसमें? राइट एट्रियम में। नीचे से आ रहा है इंफीरियर वेना केवा में। इसने तो पूरा पाइप बना दिया। ये देखें यहां से आप इंफीरियर वेना केवा, ये भी डाल दिया किसमें? इसी राइट एट्रियम में। क्या ये दोनों के हार्ट अपना भी गंदा ब्लड उसकी अपनी वेसल के साथ, उसकी अपनी वेन, जो सबसे बड़ी वेन है उसकी अपनी वेन, जिसमें मायोकार्डियम का गंदा अपना ब्लड उसमें जाता है,
और वो जो है उसको हम वेन नहीं कहते, उसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। आप यहां से देख सकते हो ये कोरोनरी साइनस इतना बड़ा, और अपने रास्ते में ये बहुत सारी वेन्स की ट्राइब्यूटरीज रिसीव करेगा। बिल आखिर सबसे बड़ा नाला ये है जो फिर उसमें चला जाएगा। जैसे शहरों के अंदर बड़े नाले नहीं होते, तो वो बड़े नाले आखिर में जाके किसी नदी में हो जाते हैं ड्रॉप। जैसे हमारे बड़े बड़े नाले होते हैं, जैसे वादुआ तो फला, ये वो आखिर में गंदे नाले जो है ना वो जाके फुलेली में डाल देते हैं, वहाँ पानी जा। तो ये जो है ना ये यहाँ से तो सबसे बड़ा जो चैनल है वो है कोरोनरी साइनस। इसमें आपको हर जगह से वेने अपना ब्लड इसमें डाल देंगी। बिल आखिर ये कोरोनरी साइनस कहाँ जाएगा? कोरोनरी साइनस बिल आखिर उसी राइट एट्रियम में जाएगा जिसमें 2 वेना केवा पहले से ही जा चुकी है। तो 3 बहुत बड़े डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के चैनल्स अपना सारा ब्लड डाल के फेंक देते हैं किसमें? राइट एट्रियम में। ये है गोदाम जहां गंदा ब्लड जमा हो रहा है। ये सिर्फ जमा नहीं होना है, इसको आगे पंप होना है टू बी ऑक्सीजनेटेड, टू बिकम ऑक्सीजनेटेड। और पंप किधर होना है? लंग्स में। और लंग्स में कौन पंप करेगा? एट्रियम तो नहीं करेगा, वेंट्रिकल करेगा। तो कौन सा वेंट्रिकल? इसी एट्रियम के आगे वेंट्रिकल पड़ा हुआ है इसी नाम से। जैसे ये राइट एट्रियम है तो वो राइट वेंट्रिकल। तो ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड इसमें आ जाएगा, और जब ब्लड इसमें आ जाएगा तो ये तो आपको देखा मस्कुलेचर कितना थिक है, एट्रियम से तो थिक है। तो ये अच्छा खासा थिक मस्कुलेचर होगा। वो जैसे ये पंप करेगा तो पंप करने के बाद ये ब्लड पंप हो जाएगा। वो पंप हो जाएगा तो इससे वेंट्रिकल जो इस वक्त क्या बना रहा है, कौन से सरफेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये एंटीरियर सरफेस, स्टेनोकास्टल सरफेस में कितनी कंट्रीब्यूशन? रफली 50% ऑफ द 70। 30 तो उसने कर दिया, ये 30-70 में अपनी तरफ से डाल रहा हूं अंदाजन। तो दिस विल बी 50% विल बी दिस वन। और ये सरफेस में तो इसने 50% ऑफ द स्टेनोकास्टल किया। बॉर्डर में कितना करेगा? कौन से बॉर्डर में? इंफीरियर बॉर्डर में ये ऑलमोस्ट 80 से भी ज्यादा करेगा। देखिए आप यहां से, ये आपका लेफ्ट इतना जाके बचता है, ये इतना बड़ा। आप अंदाजा लगाएं यहां से लेके इधर तक, जब तक ये ना आ जाए, ये पूरा एरिया इस राइट वेंट्रिकल। तो इंफीरियर बॉर्डर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? राइट वेंट्रिकल का। बाकी कंट्रीब्यूशन किसका है? लेफ्ट का। तो क्या एट्रियम का कंट्रीब्यूशन नहीं है? हरगिज नहीं, क्योंकि एट्रियम में जितनी कंट्रीब्यूशन इंफीरियरली उस सारे में घुसा हुआ है कौन? इंफीरियर वेना के बाद। तो उसका कोई बॉर्डर नीचे बचता ही नहीं है। तो इंफीरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय 2 वेंट्रिकल्स, 80% बाय राइट वेंट्रिकल एंड ओनली 20% बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। और एसआई में अगर यहां से आ जाऊं लेफ्ट बॉर्डर पे, तो लेफ्ट बॉर्डर पे तो तकरीबन 100% कौन है? कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉर्डर्स पर शेडो जब आए एक्सरे में तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा हाथ घूम रहा है लेफ्ट बॉर्डर पर, तो ये कौन सा चैम्बर होगा? मेरा हाथ घूम रहा है इंफीरियर बॉर्डर पर तो कौन कौन से चैम्बर हैं? और मेरा हाथ घूम रहा है उसके राइट बॉर्डर पर तो चैम्बर कौन सा है? तो वहां पर हमें आइडिया हो जाएगा कि किस चैम्बर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको अगर यहां पर हम देखें तो ये तुम्हारा राइट हार्ट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेन से, वेना केवा से आया राइट वेंट्रिकल में, शिफ्ट हुआ राइट एट्रियम में, शिफ्ट हुआ राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, पल्मोनरी ट्रंक में आ गया, और पल्मोनरी ट्रंक ने 2 आर्टरियां बनाई, ये लंग्स को चली गई। और लंग्स को जब चली गई तो लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेट किया, और वहां से फिर 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए वापस भेजा एट्रियम की तरफ। अब की बार लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम में, लेकिन आप बोले सर एट्रियम तो अभी भी आपने बताया था वो राइट एट्रियम था। अब जो बता रहा हूं वो लेफ्ट एट्रियम है, क्योंकि दोनों के बीच में सेप्टम है। अब जो आ रहा है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड है, पहले जो आया था वो डीऑक्सीजनेटेड था। इन दोनों में जो पड़ा होगा तो ये कभी भी एक ड्रॉप भी ब्लड आपस में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि बीच में कंप्लीट दीवार है, नाम है उसका इंटर एट्रियल सेप्टम। और अगर इंटर एट्रियल सेप्टम अगर कभी भी एम्ब्रियोलॉजिकली सही तरीके से न बन सके तो उसमें गैप आ जाएगा, सुराख होगा, जिसमें कहते हैं होल इन द हार्ट, बोलते हैं ना दिल में सुराख हो गया है। ये दरअसल सेप्टम कंप्लीटली नहीं बनते तो उनमें थोड़ा सा सुराख रह जाता है, और जब सुराख रह जाता है तो फिर थोड़ा सा ब्लड मिक्स भी हो सकता है, और मिक्स होता है यकीन। फिर मसले होते हैं और उसके बाद उनको सर्जिकली क्लोज करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से ब्लड होगा। और मैंने बताया लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वापस लेके आएगा लंग्स से साफ होते हुए तो 4 पल्मोनरी वेन्स आएंगी। जैसे ना खराब ब्लड आया था 2 वेना केवा में,
तो यहाँ साफ ब्लड आएगा 4 पल्मोनरी वेन्स में और वो एट्रियम में खुलेगा। और ये वाला एट्रियम जिसमें अब बोल रहे हैं तुम्हें, कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। वो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के लेफ्ट पे नहीं होता, राइट एट्रियम के पीछे होता है। तो इसका गलत नाम पड़ गया है लेफ्ट एट्रियम। इसी हिसाब से राइट एट्रियम का भी गलत नाम है राइट एट्रियम। एक्चुअली होना चाहिए था एंटीरियर एट्रियम एंड पोस्टीरियर एट्रियम, है नहीं ऐसा। बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो यह है कि अगर मैं इसको बोलता एंटीरियर एट्रियम, इसको बोलता मैं पोस्टीरियर एट्रियम, तो एंटीरियर एट्रियम का वास्ता किस वेंट्रिकल से है? राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल एंटीरियर एट्रियम कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा? इसलिए राइट वेंट्रिकल की वजह से इसका नाम भी डाल दिया गया यार, तुम्हें नाम दे देते हैं राइट एट्रियम, बिकॉज यू आर रिलेटेड टू राइट वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई यू आर राइट एट्रियम। और जो पोस्टीरियर एट्रियम है उसका वास्ता किस वेंट्रिकल से है? तो इस एट्रियम का भी नाम डाल दो लेफ्ट एट्रियम। समझ गए? हालांकि इसके 1-2 रीजन से एम्ब्रियोलॉजिकल, मैं एम्ब्रियोलॉजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसमें भी समझ सकते हो, वरना कंफ्यूजन होती है। आप बोल रहे एंटीरियर एट्रियम ड्रेन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर एट्रियम ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमें पता ही नहीं चलता राइट हार्ट के कौन से चैम्बर, लेफ्ट हार्ट के कौन से। सीधा सीधा बोल दो लेफ्ट हार्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। भले आपका ये एट्रियम भले पोस्टीरियर ही क्यों ना हो, फिर भी उसको बोलो लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मकसद यह है कि लेफ्ट एट्रियम किस सरफेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? पोस्टीरियर सरफेस में, माने बेस में। कितना? अराउंड 100%। अराउंड में सोचने की जरूरत ही नहीं है, अराउंड 100%, 100% बेस में एक ही चीज है, वो है आपका लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम इज 100% ऑन योर बैक साइड। और देख रहे हैं ये 2 इधर से 2 इधर से। आप समझे ये तो रेड कलर की वेन्स, ये तो फिर ऑक्सीजनेटेड है। वेन है तो ब्लू दिखानी चाहिए, नहीं, ये वो वेन्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए उसको रेड दिखाया है। और ये पल्मोनरी आर्टरी में आप पूछते हैं ना मुझसे, आर्टरी सर आर्टरियां तो रेड होती हैं, ये ब्लू दिखा रहे हैं, ये वो पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए ब्लू दिखाई है उसमें। ठीक है ना? मॉडल वाले को भी थोड़ा पता है, ये मॉडल वाले वैसे पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन इसको भी पता है इसको ब्लू रखना है। एओर्टा को तो रेड रखेगा ही, वो तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कंफ्यूजन है, इसको ब्लू रखा है इसने, क्योंकि ये आर्टरी है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वेन्स को देखें, दोनों को, चारों को रेड रखा है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। और ये लेके किसको देंगी? ये लेके लेफ्ट को देंगी। और लेफ्ट जो पंप करेगा तो किसको देगा? एओर्टा को। और आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जो फैल जाएगा तो फिर फैल ही जाएगा क्या, वहां से ऑक्सीजन डिलीवर करके वापस आएगा तो फिर वही सिलसिला, वही सुपीरियर वेना केवा, वही इंफीरियर वेना केवा, वही कोरोनरी साइनस, फिर यही सर्किल चलता रहेगा। और ऐसा पूरा साइकिल जो है टोटल, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, ये आपका 1 मिनट के अंदर कोई 72 टाइम्स रिपीट होता है। और 72 टाइम्स जब रिपीट होगा तो एक कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम 0.8 सेकेंड होगा, क्योंकि अगर 1 सेकेंड हुआ तो ये तो फिर 60 टाइम्स हो जाएगा। 1 मिनट में अगर पूरा साइकिल 1 सेकेंड का हुआ तो 1 मिनट में कितने साइकिल होंगे? जितने सेकंड्स, लेकिन वो 72 टाइम्स होता है 1 मिनट में। तो इसका मकसद है कि 1 सेकेंड होगा कि 1 सेकेंड से कम होगा, और 1 सेकेंड से कम जो है तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड का होता है, जिसमें वो दोनों काम कर देता है, कंट्रैक्शन भी और रिलैक्सेशन भी। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन उसमें भी टाइम लगेगा, रिलैक्सेशन उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन दोनों मिला के टाइम 0.8 होंगे। फिर अगला पढ़ेंगे, आप सिर्फ एक कार्डियक साइकिल पढ़ लें बस। तो इस पूरे कार्डियक साइकिल के कितने फेजेस होंगे? मेन 2, एक कंट्रैक्शन और दूसरा रिलैक्सेशन। तो एक कंट्रैक्शन होगा, दूसरा रिलैक्सेशन होगा। कंट्रैक्शन जब हो रही हो तो हम इस फेज को कहते हैं सिस्टोली। क्या कहते हैं? सिस्टोली। सिस्टोल नहीं, एल है ना ये, तो ये सिस्टोल नहीं कहा करें, इसको करें सिस्टोली। तो वन इज सिस्टोली, और इसके बाद रिलैक्स भी होगा, तभी तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर एक ही दफा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, नहीं वो बोला मैं नहीं मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा, तो भाई जिंदगी में एक ही दफा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगली दफा कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। तो इसका मकसद ये है कि आपको, जैसे जा है,
जा का असल काम चबाना है। और चबाते कब हैं? जब लोअर जा को ऊपर उठाते हैं कि लोअर जा को नीचे गिराते हैं? ऊपर। नीचे गिराने से खाएंगे? उठाएंगे तभी तो लोअर जा पर जाके करीब आएगा और बाइट आएगा। तो काम की चीज क्या है? माउथ को क्लोज करना कि माउथ को ओपन करना? क्लोज करना। लेकिन रिपीटेड के लिए आपको माउथ ओपन भी तो करना पड़ेगा ना। अभी तो कर दिया, लेकिन दोबारा बाइट करने के लिए माउथ को तो दोबारा रिपीट है। तो असल काम तो यकीनन बाइट का क्लोजिंग में है, लेकिन रिपीटेड क्लोजिंग के लिए तुम्हें ओपन भी तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कहो नहीं नहीं मेरे काम की चीज तो क्लोजिंग है, मैं क्लोज करूंगी, ओपनर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर जिंदगी में एक ही दफा क्लोज होगा। बस आप बैठे रहेंगे और बस ये एक ही दफा बाइट किया आपने जिंदगी में। तो रिपीटेड बाइट के लिए क्या होना चाहिए? ओपन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो ओपन का भी मैकेनिज्म होना चाहिए आपको। तो दरअसल ये सिलसिला इसी तरीके से होगा। तो ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरीके से होती है। तो ये टोटल मिला के एक साइकिल में कंट्रैक्शन भी मौजूद है, रिलैक्सेशन भी, फिर अगली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, नया साइकिल। आप एक साइकिल पढ़ें, बाकी सारे साइकिल एक जैसे होते हैं। तो एक होता है सिस्टोली, एक रिलैक्सेशन का फेज होता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोली। अब दोनों मिला के टोटल कितना? ठीक है ना, 0.8। जिस वक्त सिस्टोली हो रही होती है उस वक्त कंट्रैक्शन हो रहा होता है और ब्लड वेंट्रिकल से उस वक्त बाहर आ रहा होता है। किसमें? किसमें? आर्टरियों में। ये सिस्टोली में क्या सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा होता है कि दोनों कर रहे होते हैं? दोनों कर रहे होते हैं। आप एक पढ़ते हो, बात तो एक ही है। वो राइट हो रहा है, वो लेफ्ट हो रहा है, दोनों साथ हो रहे हैं। ऐसे जब साथ हो रहे हैं तो एक वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है कि दोनों से? पल्मोनरी ट्रंक में भी, एओर्टा में भी, दोनों में सेम। उधर भी 70, इधर भी 70 ml। सेम नहीं मतलब सिमिलर वॉल्यूम, तकरीबन 70 ml इधर, 70 ml इधर। हर सिस्टोली के साथ कितना ब्लड वेंट्रिकल पंप कर सकता है? 70 एक साइड पे, 70 दूसरे साइड पे, अपनी अपनी तरफ से। राइट वाला 70 डीऑक्सीजनेटेड इन पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वाला 70 ऑक्सीजनेटेड इन एओर्टा। जब वो पल्मोनरी ट्रंक में पंप करेगा तो आगे थ्रिल जो आएगी, ऐसे जंप, किस में आएगा? पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में, आर्टरियों में कि पल्मोनरी आर्टरियों में? जाहिर है वो थ्रिल किस में आएगा? राइट वाला पल्मोनरी में। और उसको झटका किसको लगेगा? लंग्स को। वो आप फील ही नहीं कर सकते। इसकी पल्स आप, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कहीं सरफेस पे होती नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी सरफेस पे, तो तुम हाथ लगा के अंदाजा लगा सकते हो कि ये पल्मोनरी आर्टरी को धक्का आया है? नहीं। लेकिन जो राइट साइड पर जो ये मामला है, तुम उसको फील ही नहीं कर सकते। माना तुम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर को तुम जज नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन तुम राइट साइड पर तो नहीं कर सकते, लेफ्ट में तुम कर सकते हो। कैसे? ये झटका किसको आएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा? थ्रिल आएगी किसमें? एओर्टा में। थ्रिल एओर्टा में आएगी क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड वेसल्स हैं सारी। थ्रिल एओर्टा में आएगी कि उसके ब्रांचेस में भी आएगी? और उस ब्रांचेस से अगर निकल के आ गई ये कैरोटिड आर्टरी, तो तुम एओर्टा को तो फील नहीं कर सकते। कैरोटिड आर्टरी पर अगर हाथ लगाओगे तो उधर थ्रिल आएगा कि नहीं? ये तुम्हारा पल्स है। और पल्स इत्तेफाक से जहां जहां वेसल्स स्किन के करीब हैं पूरी बॉडी में, उनमें तुम पल्स फील कर सकते हो, थ्रिल फील कर सकते हो, जहां भी चाहें आप। पूरे बॉडी में जहां सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां पर एओर्टा की कोई ब्रांच है, यानी जहां पर कोई आर्टरी है, वो स्किन के करीब है, तो तुम उसकी पल्स फील कर सकते हो। सबसे पहली पल्स आप यहां फील कर सकते हो, नेक में स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के एंटीरियर बॉर्डर के करीब। तुम 3 अपनी फिंगर थोड़ी सी ऐसे अंदर डाल के पल्स फील कर सकते हो। ये कैरोटिड पल्स है। ऐसी तुम सबक्लेविन आर्टरी भी है, वो भी तुम्हारे यहां अंदर इंटर हो जाती है तुम्हारे आर्म में, तो हम उसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी की पल्स तो मुश्किल है, आगे से वो ब्रेकियल हो जाती है। ब्रेकियल की पल्स आसान है क्योंकि इस जगह पर फिर ब्रेकियल की पल्स फील कर सकते हैं। इस पल्स को फायदा लेते हुए हम पल्स काउंट करने में भी काम ले सकते हैं। आप उस पर हाथ लगा के, ये जो आपका टेंडन था ना बाइसेप्स का, इस बाइसेप्स के टेंडन के मीडियल साइड पर यहां पर तुम्हें ये फील होगी इसकी पल्स। इसके पल्स को फील करते हैं। वैसे काउंटिंग के लिए यहां से हम हाथ नहीं डालते,
ये उमूमन ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने आप देखा होगा ब्लड प्रेशर में जो इन्फ्लेशन कफ है यहाँ बांधते हैं, स्टेथोस्कोप यहाँ रखते हैं, तो ब्रेकियल आर्टरी की पल्स फील करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ और हम ब्लड प्रेशर मालूम कर लेते हैं। ये इधर होता है। लेकिन अगर चाहें तो और भी नीचे यहाँ पर, और तो कुछ नहीं, ब्रेकियल दो में स्प्लिट हो जाती है, एक का नाम अल्नर आर्टरी है, एक का नाम रेडियल आर्टरी है। रेडियल आर्टरी रिस्ट के पास आके सबकुटेनियस हो जाती है और इधर पल्स फील करते हैं डॉक्टर, तकरीबन सारी दुनिया के डॉक्टर पल्स, वो थ्रिल जो है ना वो फील करते हैं कि 1 मिनट में कितनी दफा हार्ट ने पंप किया है। तो कैसे पता चलेगा? पल्स से। कितनी पल्स? जितना पल्स काउंट करेंगे 1 मिनट में, हार्ट ने 1 मिनट में इतनी दफा ही सिस्टोली की है। माने 1 मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स हुए, ये हमें पल्स का रेट, पल्स को काउंट करके पता चलेगा। नॉर्मली कितना होता है? 72। तो ये जो है ये, तो इसका मकसद है जिस वक्त पल्स फील हो रही है, ऐसे धक्का दे रही है आपके फिंगर्स को, तो ये उधर क्या हो रहा है? हार्ट खामोश है, ये डायस्टोली हो रही है कि उस वक्त सिस्टोली चल रही है? क्या ये पल्स एक दफा फील हुआ तो फील होता है कि उसके बाद थोड़ा गैप आता है? वो जो गैप आता है उस वक्त हार्ट उधर क्या कर रहा है? रिलैक्स्ड है। उसके बाद यहां क्या होता है? फिर एक और, तो नया साइकिल शुरू। तो आप जिस वक्त आपको पल्स फील हो तो समझ लेना कि हार्ट के अंदर सिस्टोली चल रही है, और जिस वक्त तुम्हें हाथ पे फील ना हो, थ्रिल, खामोशी हो, तो समझ लेना उधर हार्ट में तो सिस्टोली वाला टाइम और डायस्टोली वाला टाइम। लेफ्ट साइड से तुम आर्टरियों पे हाथ लगा के फील कर सकते हो, राइट साइड वाला तुम फील नहीं कर सकते। हालांकि प्रॉब्लम उधर भी होते हैं, वहां के रेट भी चेंज होते हैं, वहां पर भी इंक्रीज्ड प्रेशर आता है। यहां का तुम प्रेशर ब्लड प्रेशर एपरेटस के साथ जज कर लेते हो, वहां अगर बढ़ जाए तो तुम वो फील नहीं कर सकते, उसके तरीक़ेकार अलग है, वो आम डॉक्टर आम नहीं फील किया जा सकता। तो हम ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए बड़े आराम से, कोई भी, हमारा इवन वार्ड बॉय भी जाके ब्लड प्रेशर लेके आ जाता है, बड़ा आसान। किस पे? ब्रेकियल आर्टरी पे स्टेथोस्कोप लगा के उसको हम मैकेनिज्म बता देते हैं, उसको मेथड से बिल्कुल आसानी से कर देता है। हम लोग लेबॉर्ट्री में चल के एक दफ़ा आपको ये करके भी दिखाएंगे ताकि सबको पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर कैसे किया जाता है, पल्स कैसे काउंट की जाती है, और इस तरीके से ये 2-4 चीज़ें बेसिक्स से इस लेवल तक आपको आ जानी चाहिए प्रैक्टिकली। पढ़ी है ना? चलिए, अच्छा है, और वो अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टोली और डायस्टोली। अब आप देखिए, आपका सिस्टोली भी है, डायस्टोली भी है, दोनों का टाइम अंदाजा लगाएं। पल्स ने धक्का दिया आपको, उधर सिस्टोली चल रही है, खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए, उधर डायस्टोली है, दोनों को मिलाओ कार्डियक साइकिल। टोटल टाइम इनका 0.8। इन दोनों में, सिस्टोली और डायस्टोली में ज्यादा टाइम किस में लगता है? आप अपनी पल्स थोड़ा फील तो करें, पल्स फील करें। पल्स आपने धक्का दिया, खामोशी, धक्का दिया, खामोशी। इसमें देखें ज्यादा तवील कौन सा है? कौन? डायस्टोली। ये सिस्टोली के मुकाबले में थोड़ा लॉन्गर है। अगर आधा आधा कर दूं तो कितना कितना होगा? 4-4 के 0.44, 0.4, 4 नहीं, 0.4। लेकिन आधा आधा तो नहीं है। डायस्टोली ज्यादा है, कितना ज्यादा? 0.1 ज्यादा, तो 0.5 एंड 0.3। तो इसका मकसद है कि 0.5 एंड 0.3 है, तो 0.5, 0.3 हो जाएगा। 0.5, 0.3 ये मिला के 0.8, माना सिस्टोली इज लेस, डायस्टोली इज लॉन्गर। नॉर्मली ऐसा होता है, माना हार्ट खामोशी ज्यादा टाइम करता है, काम वो कम टाइम करता है। जैसे हम लोग 8 घंटे काम, 16 घंटे विदाउट वर्क, हर जगह दुनिया में ऐसा ही है। तो यहां पर भी हार्ट जो है वो 0.3 कंट्रैक्शन टू पुश द हार्ट, पुश द ब्लड इनटू द वेसल्स, एंड 0.5 रिलैक्सेशन। ऐसे नहीं कि रिलैक्सेशन का मतलब है कि बस हो जाता है, रिलैक्सेशन में भी वो काम कर रहा है। क्या? इज रिसीविंग द ब्लड, क्योंकि रिलैक्स होगा तो रिसीव करेगा ना। इज रिसीविंग द ब्लड एंड हार्ट इज बीइंग फिल्ड बाय द रिटर्निंग ब्लड, और जब रिटर्न हो जाएगा 0.5 में तो एक और पंप, नया साइकिल, फिर खामोशी, फिर दूसरा ब्लड आ जाएगा। ये सिलसिला सारी जिंदगी, जब तक आप जिंदा हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये पूरा हार्ट का साइकिल है। इसको कार्डियक साइकिल को हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में करेंगे जब हम फिजियोलॉजी करेंगे इसके अंदर।
अब यहां पर हम देखें कि आप राइट एट्रियम में अंदर एंटर होने जा रहे हैं, राइट एट्रियम में। अब देखिए राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहले देखें कि ओपनिंग्स कौन सी है। हमें तो पता है 3 वेसल्स उधर ओपन हो रही हैं। क्या सिर्फ हमें 3 वेसल्स ओपन होते हुए नजर आएंगी कि ये जो कलेक्ट ब्लड किया है ये वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट भी होगा? तो चौथी ओपनिंग भी तो होगी कि नहीं? ये कमरा है, इधर से भी नाली है, इधर से भी, उधर से भी, 3 नालियां तो हैं, लेकिन ये सब मिला के पानी हम एक और नाली में डालेंगे, एक और सुराख में, ताकि वेंट्रिकल की तरफ जा सके। तो सुराख 3 होंगे कि 4 होंगे? तो 1 जो होगा वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होगा। उसको हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, ओरिफिस ओपनिंग, जो भी कहें। तो तुम्हें कितने ओपनिंग्स मिलेंगे? 3 openings where from the deoxygenated blood is being poured into the right atrium, and 1 will be where the whole total blood has to be pushed forward into the ventricle. वो एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होगी। किस एट्रियम की बात कर रहा हूं मैं? राइट की। इसलिए इस ओरिफिस को बोलेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। राइट साइड से, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। राइट एट्रियम को मैं खोल रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, ये राइट एट्रियम। अब देखिए पहले इसको, ये पूरा राइट एट्रियम है। ये खोलूंगा तो मैं 3 सुराख भी दिखाऊंगा और चौथा भी दिखाऊंगा जहां से वो एट्रियम की तरफ जा रहा है, वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, वो तो दिखाएंगे ही। लेकिन थोड़ा सा देखें इसमें कौन खुल रहा है इसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जितना भी एट्रियम है, ये इतना पूरा जो देख रहे हैं, इस पूरे के बाद इसके साथ थोड़ा सा मिला हुआ राइट की तरफ पुश करता हुआ ये छोटा सा हिस्सा ये भी है जो पल्मोनरी ट्रंक को थोड़ा सा कवर कर रहा है। ये नजर आ रहा है आपको? ये देखें आप, यहां थोड़ा लाइट ऑफ करना, एक ऑफ कर दो। ये देखना, ये छोटा सा हिस्सा है, तो बहुत बड़ा है, ये एट्रियम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ये हिस्सा छोटा सा, बाकी आपका एट्रियम है वैसे से होता है, ये बाकी ये एट्रियम है आपका। लेकिन ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ना एट्रियम का, जो किस तरफ आया है, राइट की तरफ से आके लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है और थोड़ा सा किसको कवर किया है इसने? पल्मोनरी ट्रंक के बेस को थोड़ा सा कवर किया है इसमें। ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, किसका? राइट एट्रियम का, इसको बोलते हैं आरिकिल। क्या बोलते हैं? किस एट्रियम का हिस्सा है? तो इसको बोलते हैं राइट आरिकिल, क्योंकि ऐसी हरकत लेफ्ट भी करेगा। तो यह है राइट आरिकिल, और बाकी जितना भी है इसका नाम क्या है? नहीं, ये राइट आरिकिल नहीं है। अब सब आरिकिल होंगे क्या? आरिकिल यूं समझ लो नॉन फंक्शनल होता है, ये टुकड़ा सा जिसमें कोई जाता ही नहीं है, ऐसे समझो हॉन्टेड सी चीज है। तो क्या दूसरा भी आरिकिल होगा? तो फिर एट्रियम काम ही नहीं करेगा क्या? ये है क्या? आरिकिल। लेकिन बाकी जो बड़ा हिस्सा है 95% से भी ज्यादा वो एट्रियम है। फर्क दोनों में अंदर क्या है? जब आप अंदर जाएंगे ना, तो ये जो राइट आरिकिल है इसका मस्कुलेचर जो है ये रफ है अंदर, इसकी वाल क्या है? खुरदरी सी हैं, रफ हैं। लेकिन बाकी जितना एट्रियम है उसके अंदर से वाल स्मूथ है बिल्कुल। तो आरिकिल इज स्मूथ वाल्ड और रफ वाल्ड। ये नॉन फंक्शनल है, एक तरह से काम की चीज ही नहीं है। ये एम्ब्रियोलॉजिकली था, अब काम नहीं करता। ये बच्चे में काम करता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, बस ऐसे छोटा सा रह जाता है, नॉन फंक्शनल। इसका नाम है क्या? इसका नाम है राइट आरिकिल। और ये जो बड़ा सा हिस्सा है जिसमें ये तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा भी और इंफीरियर वेना केवा भी ओपन हो रहे हैं, इनका नाम है क्या? ये है तुम्हारा असल में एट्रियम, ये है वो। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ये नॉन फंक्शनल है, उसकी वाल रफ है, बाकी सब जो वाल है उसकी एट्रियम स्मूथ वाल्ड होता है और ये रफ वाल्ड होता है। ये बात आ गई समझ में? अब ये स्मूथ वाल्ड जो रफ वाल्ड है ना, ये सरफेस पर बाहर से ही, यहां तो इतना नहीं दिखा रहा है, इस जगह से ही थोड़ी सी डिप्रेशन होती है इसमें, जिससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि इसके लेफ्ट तरफ आरिकिल है और इसके राइट तरफ इतना बड़ा एट्रियम है।
तो क्या मौजूद होगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन के लाइन की तरह होगा, सल्कस होगी, इसको सल्कस कहते हैं, यानी ऐसे सल्कस। जैसे ना पेपर पर तुम पेन का पिछला ऐसा ऐसे जोर से करो तो देखिए अंदर निशान आ जाता है ना, इस किस्म की सल्कस क्रिएट हो जाती है। तो ये सल्कस होती है, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल सल्कस। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई टर्मिनल सल्कस किस जगह है, तो लोकेशन क्या होगी इसकी? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट आरिकल, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सल्कस विल बी माय रफ वॉल्ड आरिकल, एंड टू द राइट इट विल बी ह्यूज 95% स्मूथ वॉल्ड एट्रियम। ये सल्कस है। अब ये एट्रियम है, ये सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक सुनी हुई चीज जो आपने पहले सुनी हुई है, उसका असल जो नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, ये आज आपको पता चलने वाला है। ये क्या था? स्मूथ वॉल्ड एट्रियम, और ये आरिकल। जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तब जब हार्ट डेवलप हो रहा होता है, तब एट्रियम, ये जो आरिकल है ना, आज बेचारे को आरिकल आरिकल कह के ऐसे डस्टबिन में फेंका हुआ है हमने। दरअसल हार्ट का एट्रियम ये था उस वक्त। किस वक्त? जब बच्चा डेवलप हो रहा था, अभी 5 हफ्ते का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, तो उसका एट्रियम ये था। एट्रियम छोटा सा रफ वॉल्ड। तो आप बोलेंगे सर वो जो एट्रियम जो आजकल एट्रियम बोलते हो, ये तब था ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं था तब। फिर हुआ ये कि ये जो एट्रियम है, जिसको आरिकल कह के तुमने धुतकार दिया एक तरह से, एक्चुअली यही था। दिस वाज एट्रियम एंड दिस वाज नॉट प्रेजेंट। तभी तो वो एट्रियम था, थोड़ी ये भी एट्रियम वो भी एट्रियम, 2 एट्रियम तो नहीं होंगे। वो था, सिर्फ था ही वो, ये था ही नहीं। फिर हुआ क्या? इस ओरिजिनल एट्रियम में, ओरिजिनल एट्रियम जो असल में एट्रियम ये है, इस ओरिजिनल एट्रियम में दो ग्रेट वेसल्स आके ज्वाइन किया उन्होंने। किसमें? इस एट्रियम में, वो जो छोटा सा एट्रियम है, इसमें किसने ज्वाइन किया? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ने ज्वाइन किया इनको। और जैसे जैसे ज्वाइन किया, वैसे वैसे जैसे जैसे ये वेसल्स सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जैसे जैसे बड़ी होती गई, ऐसे जो मिक्स हो गई, तो दोनों के मिक्सचर की वजह से एक बहुत बड़ा चेंबर क्रिएट हो गया सेंटर में। यहां से ये ऊपर हुए, ऐसे जो हुआ, ये चेंबर किस वजह से क्रिएट हुआ है? क्या ये मेरे इस एट्रियम का हिस्सा है कि ये एक नया चेंबर क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द 2 सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा दे ज्वाइन टुगेदर? अगर ये ज्वाइन हो गई तो ये क्या हो गया? क्रिएट, एक चेंबर क्रिएट हो गया। रफ वॉल्ड के ये स्मूथ वॉल्ड है, ये स्मूथ वॉल्ड है। और ये जो स्मूथ वॉल्ड चेंबर है ना, इस स्मूथ वॉल्ड चेंबर का नाम है क्या क्या क्या? राइट एट्रियम? नहीं, इस स्मूथ वॉल्ड चेंबर का अभी राइट एट्रियम नाम नहीं डाला, उसका नाम है राइट एट्रियम। ऐसे कैसे नाम डाल देंगे आप इसको? पहले उसका नाम तो चेंज करें। अभी उसका नाम चेंज नहीं किया है हमने, तो ऐसे नहीं ये करेगा तो तुम भी राइट एट्रियम, मैं भी राइट एट्रियम, ऐसे नहीं बोलेगा वो। अभी फिलहाल वो अपना ऐसे नाम बताएगा कि मैं आ गया हूँ, मैं हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी आते ही थोड़ी बोलेगा कि मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ। अभी आके बोलेगा ये मेरा कारोबार है, ये मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, ऐसे बोलेगा ना अभी तो यहाँ से ये एक साइनस क्रिएट हो जाएगा, स्मूथ वॉल्ड साइनस। क्या है ये? साइनस क्रिएट हो जाएगा। किसने किया ये साइनस क्रिएट? वेन्स ने इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा ने, वेन्स ने। तो इसको मैं क्या कहूं? आर्टीरियल साइनस के वीनस साइनस? तो हम इसको वीनस साइनस कहते हैं। इसको बोलते हैं साइनस विनोसस, बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं? साइनस विनोसस, चलो वीनस साइनस या साइनस विनोसस। जो किसकी वजह से स्मूथ वॉल्ड चेंबर इतना बना है? 2 सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के जुड़ने से। ये बेसिकली किसके साथ जुड़ी हुई थी?
एट्रियम के साथ। तो ये जो साइनस विनोसस है किसका हिस्सा बन जाएगा? एट्रियम का हिस्सा बन जाएगा। एट्रियम बेचारा दब के रह जाएगा, ये ग्रो करेगा। ये ग्रो करते 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 एट्रियम को वही जगह देगा कि उसको पुश कर देगा आगे। वो जो उसको पुश कर देगा तो ये पुश करके आगे छोटे से कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन अटैच है इसके साथ क्या? कौन? साइनस विनोसस। ये साइनस विनोसस के साथ अटैच है। ग्रो कौन कर रहा है? ये देखो आके मिले थे। ग्रो कौन कर रहा है? साइनस विनोसस। और वो जो असल में एट्रियम है क्या ग्रो किया कि पुश हो गया? तो जब ये ग्रो करेगा ऐसे तो बीच में सल्कस क्रिएट होगी कि नहीं? दोनों करते तो सल्कस ना होती। दो भाई हैं, एक भाई बेचारा छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर रहा है, दूसरा बिजनेस करके करोड़पति बन गया। तो दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं? डिफरेंस आएगा। वो बीच में एक दरार सी नजर आएगी, हमें दूर से ही नजर आएगी। वो गाड़ी में जा रहा है, वो साइकिल में जा रहा है, वो दूर से नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा? यहां से भी दूर से वो जो सल्कस मैंने बताई थी ऐसे है कि ऐसे होने की वजह से सल्कस क्रिएट हो गई है, सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनलिस के राइट तरफ क्या है? साइनस विनोसस। इतना ग्रो हो गया है 95%। उसने बोला यार ये क्या मुझे साइनस साइनस कहना शुरू कर दिया तुमने, मुझे बोलो मैं हूं एक्चुअली एट्रियम। तो इस साइनस विनोसस ने क्या नाम डाल दिया अपने आप पे? आई एम द एट्रियम, आई एम राइट एट्रियम। तो वो बोलेगा राइट एट्रियम वाला बेचारा, यार मैं भी था राइट एट्रियम, वो मिस्किन सा बेचारा है 5% रफाल, इसमें तो ब्लड भी आजकल नहीं जा रहा, लोग भी नहीं मिल रहे उससे, वो कॉर्नर में पड़ा हुआ है नवाज शरीफ की तरह। अभी वो बोलेगा मैं भी था प्राइम मिनिस्टर, अब वो बोल देंगे। अब सुना है कि वो उस बेचारे के शुरू के दिनों में आटे के उस बैग्स पर उसके भी फोटो थे, और आजकल बोला है उनके फोटो भी आस्ता आस्ता पहले लगाए थे फोटो के शायद वोट इससे मिल रहे हैं, पता चला इसका वोट ही खत्म हो गया है, अब उसके फोटो भी उतार रहे हैं। अब आजकल आपने देखा होगा उसके फोटो नहीं लगे हुए हैं आजकल। तो यहाँ उस बेचारे आर्टिकल जो अपने आप को कहता था आई एम द एट्रियम, तो ये एट्रियम का नाम टेक ओवर कर लिया किसने? साइनस विनोसस ने। और फिर उस एट्रियम का नाम बेचारे का पड़ गया आरिकिल। आरिकिल ये होता है, यानी ये पतली सी एक चीज जो पड़ी हुई है ना उधर, वो एक्चुअली उसका नाम एट्रियम हुआ करता था। अब जैसे ना एक होता है घर का बड़ा होता है अब्बा जान, वो जब रिटायर हो जाता है वो कहते हैं वो बूढ़ा जो पड़ा हुआ है। मकसद है कि ऐसे हमारी तो कल्चर नहीं है ऐसी, लेकिन ओवरऑल आपने देखा होगा जो बूढ़े होते हैं उन बेचारा उनको घरों पे ही कोई नहीं रखता है। ओल्ड होम्स होते हैं वो, वहाँ पर कोई बच्चे वेस्ट में घरों में रखते ही नहीं बूढ़ों को, उनके ओल्ड होम्स बने हुए हैं वो, क्योंकि वहाँ कल्चर ही ऐसा है। तो यहाँ पर पुश होके ये इधर चला गया। अब इसका नाम वो एट्रियम वेट्रियम नहीं है, वो जो उसका ओरिजिनल नाम था, अब इसका क्या बोल दिया गया है? आरिकिल, जो है रफवाल्ड। जबकि ये जो असल साइनस विनोसस था उसका आज नाम है एट्रियम, उसने नाम ले लिया है। अब हम कह सकते हैं कि वी हैव जस्ट आरिकिल, वो है ओरिजिनल एट्रियम, जो आज इसका नाम आरिकिल है वो है साइनस विनोसस, लेकिन आज इसका नाम है एट्रियम। जो रिसीव कर रहा है क्या? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस भी ये रिसीव कर रहा है। तो ये जो सल्कस मैंने क्रिएट की थी जिसका नाम डाला था मैंने सल्कस टर्मिनलिस, इसको मैं साइनोएट्रियल सल्कस कह सकता हूं? कह सकता हूं या नहीं? क्यों? इस सल्कस को मैं क्या साइनोएट्रियल सल्कस कह सकता हूं? कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये पुराने एट्रियम और पुराने साइनस के बीच में है, इसलिए इसका नाम है साइनोएट्रियल सल्कस। मामला यहां नहीं रुकेगा। अब इससे जो काम लेने वाले हैं आप वो ये है, मुझे जरा पेपर देना छोटा सा। साइनोएट्रियल सल्कस याद रखना नाम। बस 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 एक हो गया। इतना बड़ा हार्ट तो यही नहीं है, मैंने कहा इतना चाहिए तो छोटा, इतना चाहिए बल्कि इतना। पैसे खुद नहीं ना भरने पड़ते, तभी ये यार खुद भरने पड़ते ना, अब्बा को भरने पड़ते ना, इसलिए
जब आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा ना, जब आप जब सो रहे होंगे, एसी वैसी चलते होंगे, तो अगर ठंड हो गई है तो अब्बा आके बंद करते होंगे वो, क्योंकि बिल वो दे रहा है ना, इसलिए बिल नहीं आता। क्यों? अच्छा, डायरेक्ट भी चलते हैं क्या? मैंने कब बताया कि अच्छा वो 5,000 में एसी चल जाता है? मैं लास्ट टाइम अभी रिसेंटली कोई एक बिल था, मेरा ख्याल है कोई, मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैंने कोई वो बिल जो है ना वो मैंने पे नहीं किया, एक दिन गुजर गया। ये लोग रिकवरी पे निकले हुए थे तो मेरे पास आए, मुझे बोलते सर ये आपके जो 3 मीटर लगे हुए हैं उसमें से 2 के तो बिल आए हैं, 1 का बिल आया नहीं। अब मैं वो ऑनलाइन पे करता हूँ, मेरे ध्यान से शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद वो पे किया तो गया नहीं या क्या, मैंने ध्यान नहीं किया, कोई उधर शो नहीं किया, एक बिल पे नहीं हुआ। अब मैं उस घर में तकरीबन 2006 से अभी 24 से तकरीबन 18 साल मुझे हो गए। तो मैंने उनको कहा यार मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने बिल टाइम से दिया ना हो, 17-18 साल मुझे हो गए हैं। और मैंने उनको स्टेटिस्टिक्स बताए, मैंने कहा ये घर टोटल जो है ना वो प्लाट लेके सारा घर बनाया है, ये टोटल घर कोई 36 लाख में बना है। ये 36 लाख उस ज़माने के, आज तो 36 लाख 8-9 करोड़ हो गए होंगे। तो वो मैंने कहा इस 36 लाख में तो घर बना है, लेकिन मैं वापडा को तकरीबन 80 लाख देख चुका हूँ 18 साल में। ये दुनिया में मेरा ख्याल है ये पहला मुल्क है जहां पर घर की कास्ट से ज्यादा एक्चुअली बिजली का बिल है। हाँ, कितना? क्या 200 रुपये? नहीं, 200 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीटर की रेंट ही तकरीबन 300-400 रुपये होती है। ये फिर बिजली का बिल नहीं होगा, ये बिजली का नहीं, ये मेरा ख्याल है कोई होगा, किसी बन कबाब वाले का बिल होगा ये। आप उसको बिजली का समझ रहे होंगे। बिजली के बिल ये 100 में नहीं, आजकल लाखों में आ रहे हैं। 100 में बिजली का बिल नहीं है। 200 रुपये की तो स्लाइस की बड़ी वाली बॉटल मिलती है। आपको बिजली 200 रुपये की आप अगर ऐसा बोलेंगे ना तो ये नहीं, ये मीटर उतार के, तार ही उतार के ले जाएंगे आपसे। ये 200 रुपये, 100 का तो मामला ही नहीं है ना, ये अब हजारों से लाखों में पहुंच गया है। समझ गए? तो अब देखें, ये एट्रियम है, बाहर से मैं सल्कस ड्रा कर रहा हूं। सल्कस जैसे आप देखें, आप भी करके देखना अपने कॉपी पे। अगर मैं यहां से सल्कस ड्रा करूं तो ये देखें निशान आएगा कि नहीं? यहां से निशान आएगा उभरा हुआ कि डिप्रेस्ड, ठीक है। यही अगर मैं अंदर से देखूं तो ये अंदर से डिप्रेस्ड होगा कि अंदर से उभरा हुआ होगा? तो बाहर से तो तुम सल्कस कह सकते हो। कौन सी सल्कस? साइनोएट्रियल सल्कस। अंदर से फिर सल्कस नहीं कह सकते। सल्कस वो डीप जो ग्रूव होती है उसको कहते हैं। ये उभरी हुई है, उभरी हुई को कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? तो अंदर उसको क्या कहेंगे? साइनोएट्रियल क्रेस्ट। बाहर उसका नाम क्या डाला था? या इसका दूसरा नाम क्या था? सल्कस टर्मिनलिस। तो अंदर नाम क्या डालेंगे? या डाल देंगे सल्कस टर्मिनलिस, या डाल देंगे अंदर उसका नाम क्रिस्टा टर्मिनलिस, माने टर्मिनल क्रेस्ट। बाहर टर्मिनल सल्कस, अंदर टर्मिनल क्रेस्ट, सेम चीज। तो इसका मकसद है कि जब मैं अंदर एट्रियम में जाऊंगा और मैं देखूंगा क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो दरअसल है साइनोएट्रियल क्रेस्ट, तो उसके एक तरफ होगा रफ वाल्ड और इकिल, और दूसरे तरफ ह्यूज होगा स्मूथ वाल्ड, और जिसमें ऊपर से टपक रहा होगा मेरा सुपीरियर वेना केवा का ब्लड और नीचे से आ रहा होगा मेरा इंफीरियर वेना केवा का ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा के ब्लड के साथ छोटा सा एक सुराख और भी होगा जिससे कोरोनरी साइनस का ब्लड आ रहा होगा। मामला यहां नहीं रुकेगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप देखें। ये जो पूरा जो सल्कस है ना अंदर, ये क्रिस्टा टर्मिनलिस जो अंदर है ऐसे यहां पर, इस क्रिस्टा टर्मिनलिस किस चीज का बना होगा? मस्कुलेचर का।
इस मस्कुलेचर में क्रिस्टा टर्मिनलिस के टॉप पर, क्रिस्टा टर्मिनलिस के टॉप पर जो मसल है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई होके ना तो मसल होगा ना नर्वस टिश्यू होगा, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्रिएट हो जाएगा। ये है मेरा जनरेटर जो मुझे 72 टाइम्स करंट देता रहेगा। इसको अल्लाह ने हुक्म कर दिया है कि जब तक ये जिंदा है हार्ट इसको करंट प्रोवाइड करता रहेगा, और तुम्हारा हार्ट करंट प्रोवाइड करेगा 72 टाइम्स अ मिनट। माने इसका मकसद है कि हार्ट सिस्टोली में जाएगा 72 टाइम्स अ मिनट, यानी तुम्हारा पल्स फील होगा 72 टाइम्स अ मिनट। ये कहाँ बैठा हुआ है ये वाला डिप, ये कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक अ नोड, किधर? क्रिस्टा टर्मिनलिस के टॉप पर, क्रिस्टा टर्मिनलिस के टॉप पर। जो क्रिस्टा टर्मिनलिस का असल नाम क्या होना चाहिए था? साइनो एट्रियल क्रेस्ट। तो फिर इसका नोड का भी क्यों नहीं नाम डाल देते ऐसा ही? क्या यही है ऐसे नोड। ये साइनो एट्रियल नोड बोलते ही इसलिए हैं इसको क्योंकि ये साइनो एट्रियल क्रेस्ट के टॉप पर बैठा हुआ है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? साइनो एट्रियल नोड। यानी कितनी दफा इंपल्सेस दे रहा है? 72 टाइम्स। अगर ये न चाहे कि नहीं 62 टाइम्स, तो हार्ट 62 टाइम्स बीट करेगा। अगर ये चाहे नहीं 100 टाइम्स, तो हार्ट 100 टाइम्स बीट। तो पेस को डिटरमाइन कौन करता है? हार्ट के पेस को, स्पीड को कौन डिटरमाइन करेगा? इसलिए इसका नाम है पेसमेकर। पेसमेकर इसलिए कहते हैं इसको। तो ये दो नाम हमेशा याद रखें आप कि इसको साइनो एट्रियल, ये देखो मैं आधा घंटा ज़ाया किया है सिर्फ इसको समझाने के लिए, वरना स्टूडेंट कहते साइनो एट्रियल, साइनो ऐसे नोड सारी दुनिया बोलती रहती। तुम्हें पता होना चाहिए वाई साइनो एट्रियल नोड, नाम क्यों पड़ा इस पे ऊपर, ये साइनो क्या है, ये एट्रियम क्या है, ये अरिकल क्यों, ये चीज़ें जहन में होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप नहीं होंगे ना जहन में, सारी ज़िंदगी ये परेशान करती रहेंगी, और आगे चल के फिर दूसरे जैसे पेथो वेथो में आओगे तो वहाँ कोई भी टाइम नहीं देगा। ये फिजियोलॉजी एनाटॉमी चल रही है तो ये टाइम एक कर लो इसको, ख़ास तौर पे जो बहुत मशहूर चीज़ें हैं जिसके बारे में एक स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। तो ये साइनो एट्रियल नोड का नाम साइनो एट्रियल नोड क्यों पड़ा है, वजह समझ में आ गई। तो ये साइनस विनोसस क्या है, एट्रियम क्या है, या आज का कल का एट्रियम आज अरिकल क्यों है, तो फिर अगर वो अरिकल है एट्रियम नहीं रहा तो एट्रियम नाम किसने ले लिया, वो साइनस विनोसस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पता होना चाहिए। ये क्रिस्टा टर्मिनलिस और सल्कस टर्मिनलिस क्या है, ये क्रिस्टा टर्मिनलिस के टॉप पे जो नोड बैठा हुआ है स्पेशलाइज्ड, जिसमें से इम्पल्स निकल रहा है, सेल्फ जनरेटिंग ऑटोमेटिक इम्पल्सेस 72 टाइम्स अ मिनट, इसको यहाँ पे हम कहते हैं ऐसे नोड। और इसी पे डिपेंड करता है कि हार्ट कितनी दफ़ा पंप करेगा, तो इसको हम बोलते हैं द पेसमेकर, इसको पेसमेकर कहते हैं। अब ये जो पेसमेकर एक दफ़ा इम्पल्स देगा ना, तो फिर ये किसको करंट प्रोवाइड करेगा, पूरी हार्ट को कि सिर्फ एट्रियम को? सिर्फ एट्रियम को। राइट को कि दोनों को? क्यों? क्योंकि राइट और लेफ्ट के बीच में जो सेप्टम है वो भी मसल का बना हुआ है। तो क्या सिर्फ राइट एट्रियम का मसल उसमें करंट दौड़ेगा कि सेप्टम में भी, और सेप्टम में कि लेफ्ट एट्रियम में भी? तो ये ऐसे नोड जब करंट को पास करता है तो दोनों एट्रियम में करंट दौड़ जाता है, क्योंकि बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो सेप्टम है वो फाइब्रस टिश्यू का नहीं बना हुआ, वो भी मसल का बना हुआ है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट, राइट भी कॉन्ट्रैक्ट, एक इंपल्स के साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या ये इंपल्स साथ में सेम टाइम पर क्या वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स के बीच में फाइब्रस पार्टीशन होती है जो इंसुलेटेड है, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। इसका मकसद है कि वेंट्रिकल में इसका करंट नहीं जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन कोई और इस करंट को वहां पहुंचाएगा, होगा इसी का करंट, रेट यही होगा 72। लेकिन यहां से एक और चीज आएगी जो इस करंट को पकड़ेगी, जो वेंट्रिकल तक भेजेगी। यहां इस क्लास का करंट वहां नहीं पहुंचेगा, बाहर कॉरिडोर में इसका करंट इसलिए नहीं क्योंकि ये जो दीवार है ये इंसुलेटेड है, इसका करंट वहां नहीं जाता।
तो इसका मकसद है कि यहाँ इसका करंट बाहर पहुंचाने के लिए क्या होगा, यहाँ से एक और नोड होगा जो ऐसे नोड को करंट पकड़ेगा, उसका कलेक्ट करके यहाँ से एक तार भेजेगा जो बाहर करंट पहुंचाएगी। किस पे? वेंट्रिकल पे। कौन से वेंट्रिकल पे? दोनों पे, क्योंकि उसका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो फिर मसल है, तुम वहां पहुंचा दो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मकसद यह है कि एट ए टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सबसे पहले क्या चारों की कॉन्ट्रैक्शन होती है कि पहले दो एट्रियम की होती है? और क्या उसी टाइम पर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है कि वेंट्रिकल अभी फिलहाल देख रहा है, वेट कर रहा है कि ये करंट मेरी तरफ पहुंचे, और जैसे करंट पहुंचेगा तो अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तक के एट्रिया रिलैक्स हो चुके होंगे। कभी भी चारों चेंबर एक साथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्टेड एक साथ हो गए तो जो ब्लड ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे वाला उसी टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्टेड हुआ तो रिसीव कैसे करेगा? तो ये होगा, जगह ही नहीं होगी, तो ये से होगा। अब देखिए ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये अभी रिलैक्स है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये रिलैक्स है। ये कौन रिलैक्स है? दो एट्रिया मैं दिखा एक रहा हूं, समझ लेना कि दोनों साथ ही, और ये एक वेंट्रिकल दिखा रहा हूं, एक नहीं दोनों ही। और इस तरीके से ये सिस्टोली। और तुम जो पल्स फील करोगे वो एट्रियम की कंट्रैक्शन से नहीं करोगे, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से तुम अपनी पल्स फील करोगे। क्योंकि एओर्टा में थ्रिल कब आएगी? जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे कि वेंट्रिकल्स करेंगे? वेंट्रिकल्स करेंगे। चलें आप 10-15 मिनट गैप करें तो इसको आगे बढ़ाते हैं अगले पोर्शन में। यहां पर एक लाइट ऑफ करो। ओके, नाउ प्लीज गेट सेटल्ड। बस सेटल हो जाओ, जल्दी करो, शाबाश। ओके, नाउ लुक, लाइट ऑन करो थोड़ा। ओके, सी दिस। आई टोल्ड यू दैट this apex is just opposite the base, or you can say base is opposite the apex. So if the apex is posterior, I say if the base is posterior, so apex should be anterior, and if it is contracting and relaxing like this, तो ये जो अपेक्स है ये आपके चेस्ट को हिट करेगा, करेगा कि नहीं? बिकॉज दिस अपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। ऐसे नहीं जा रहा है सिर्फ ऐसे, ये ऐसे, तो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो चेस्ट को अंदर से हिट करेगा या नहीं? ठीक है ना? तो इसको हम यहां पे कहते हैं अपेक्स बीट। अगर चेस्ट पे ज्यादा फेट ना हो तो ये अपेक्स बीट वो स्पॉट वहां आपको दिखाई भी देगा जहां ये हार्ट हिट कर रहा है। बच्चों में दिखाई देता है, शाबाश। क्यों? क्योंकि बच्चे का चेस्ट जो है वो इतना थिक नहीं है, फैट भी नहीं है। लेकिन अगर फैट है तो नहीं दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप हाथ रखेंगे ना अगर आप, तो आपके हाथ के नीचे वो हिट और जो फील है वो थ्रिल फील होगा। और इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जगह पर ये मुझे हार्ट लग रहा है। और जब आप उस जगह पर फिंगर रखेंगे ना तो ये दरअसल लेफ्ट साइड पर होगा, मिड लाइन से ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर अवे होगा टू द लेफ्ट। और होगा कहाँ? इंटरकास्टल स्पेस में होगा, 5th लेफ्ट इंटरकास्टल स्पेस में। इंटरकास्टल मतलब रिब्स के बीच वाली स्पेस। पहले और दूसरे रिब्स के बीच में स्पेस फर्स्ट इंटरकास्टल, दूसरे और तीसरे के बीच में सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में फोर्थ, और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस वहां पर। और वो इत्तेफाक से निपिल के बिलो आपको पड़ेगी। ये इस जगह पर क्या होता है? अपेक्स बीट होता है। तो ये उम्मन इसकी लोकेशन पूछते हैं अपेक्स बीट की। तो अपेक्स बीट होगा यहाँ पर, वो आपको हाथ से भी फील होगा, और अगर थिन है स्किन और
थोरेसिक वाल या बच्चा है तो उसमें विजिबल भी हो गया, आंख से देख भी सकते हैं आप, इसको एपेक्स बीट कहते हैं। अब यहां पर आप देखें, मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि इसको थोड़ा सा खोल के राइट एट्रियम का अंदर विजिट करना चाहते हैं, जहां हमें वो 3 ओपनिंग्स नजर आएंगी जहां पर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट इटसेल्फ। अब इसको थोड़ा सा खोल रहे हैं हम लोग। अब इसे खोलने से इन्होंने ऐसे बनाया है, अब इन्होंने ऐसे बनाया है लाइक दिस, ऐसे कि आरिकल भी इसके साथ आ गया है, आ गया कि नहीं, और इसके साथ साथ ये राइट एट्रियम का बड़ा हिस्सा भी आ गया, बाकी हिस्सा इसका है। तो देखिए मैंने जब ऐसे हटाया और आरिकल को अंदर से देखा तो देखो आरिकल अंदर से रफ वाल्ड नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए ठीक है, आरिकल अंदर से रफ वाल्ड है, बाकी जितना भी एट्रियम है वो हमेशा स्मूथ वाल्ड। क्या ये स्मूथ, कि यहां भी स्मूथ ही होगा, और इसमें मैंने वो देखना है उसके वो तीनों ओपनिंग्स, ठीक है, वो तीनों ओपनिंग्स आप देखें कैसे। एक ये कौन सा, इंफीरियर वेना केवा, ये देखें ये इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से वो वहां है लेकिन ये सुपीरियर वेना केवा, ब्लड आ गया। क्या सिर्फ सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, या ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग भी होगी, ये इधर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये भी आप थोड़ा सा अपने हाथ से बना सकते हैं। तो हाउ मेनी ओपनिंग्स, फ्रॉम 3 ओपनिंग्स, ऑल deoxygenated blood from everywhere has been actually brought back here into the right atrium. लाइट ऑफ करो, चलो दूसरा भी ऑफ करो लाइट। अब ये कहीं यहां से ये देख रहे हैं ऊपर से क्या आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा ओपन हो गई, ये ओपनिंग आ गई, यहां से ब्लड आ गया। क्या सिर्फ ये कि ये इंफीरियर वेना केवा भी है, ये इंफीरियर वेना केवा, यहां से ब्लड आ गया। क्या सिर्फ ये है कि इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग के वेरी क्लोज टू दैट एक और ओपनिंग होगी जिससे भी ब्लड आएगा, किसका, हार्ट का, और ये है ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये तीनों ओपनिंग्स यहां पर आ चुकी हैं। अब ये है मेरा राइट एट्रियम जिसमें इस वक्त ब्लड पड़ा हुआ है। अब ये ब्लड पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने यहां से उठाया है, क्या आरिकल वगैरह ये उठा दिया है, तो कहीं यही होगा क्या, ये देखें आरिकल यहां पर छोड़ा है तो इस जगह पर होगा ना वो साइनस नहीं, साइनो एट्रियल सल्कस, सल्कस के क्रेस्ट, तो क्रेस्ट के टॉप पर होगा ना वो ऐसे नोड, तो ये ऐसे नोड, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ राइट एट्रियम इज ऐसे नोड, एंड दिस इज प्रेजेंट वेयर, दिस इज प्रेजेंट क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एट द टॉप ऑफ क्रिस्टा टर्मिनलिस। और ये 3 ओपनिंग्स यहां पर आ गई हैं। और ये अब क्या सिर्फ तुम राइट एट्रियम में बैठे हुए हो, क्या राइट एट्रियम में बैठे हुए हो कि राइट एट्रियम के पीछे है लेफ्ट एट्रियम भी, तो क्या तुम्हारा हाथ राइट एट्रियम में बैठे हुए बंदे का क्या हाथ लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है कि पार्टीशन होगी? तो ये जो इस वक्त तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये दरअसल पार्टीशन है। इसमें मैं पिन पास करूंगा तो मेरी पिन किधर जाके निकलेगी, नीडल बैक साइड पर, और बैक साइड पर किसमें, एट्रियम में, क्योंकि बैक पोर्शन पोस्टीरियर साइड बेस जिसको बोलते हैं वहां एक ही तो चेंबर है, वो है लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो इस वक्त पार्टीशन है ये है क्या, राइट एट्रियम का पोस्टीरियर वाल है। भाई मैंने उठा, ये मैंने क्या निकाल दिया, इसका इंटीरियर वाल निकालिए ना, जब इंटीरियर वाल को रिमूव किया तो मैं अंदर पहुंच गया, तो ये मेरा कौन सा वाल है, पोस्टीरियर वाल। इस पोस्टीरियर वाल के पीछे कौन है, लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मकसद ये है कि ये जो पोस्टीरियर वाल है ये दरअसल सेप्टम है। ये क्या है, देखो ये है राइट एट्रियम, इस कमरे के पीछे जो कमरा है वो मेरी तरफ से लेफ्ट एट्रियम है। तो मेरी जो पार्टीशन होगी, इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, राइट एट्रियम में कौन सी वाल होगी फिर, पोस्टीरियर वाल। तो ये पोस्टीरियर वाल जो आप यहां पे देख रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम है। अब इसको समझना है इंटर एट्रियल सेप्टम को। ये सेप्टम ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऐसे आ गया बीम और मैंने ऐसे कर दिया शटर की तरह और हो गया मेरा इंटर एट्रियल सेप्टम और मेरा कमरा 2 हिस्सों में बट गया, ऐसा नहीं है। ये वाला जो सेप्टम है ना, ये सेप्टम ऐसे नहीं आता है। ये सेप्टम जब बनता है एम्ब्रियोलॉजिकली, ये जब एम्ब्रियोलॉजिकली सेप्टम बनता है तो ये ऐसे होता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ये एक कमरा है, ये एक रूम है,
इस रूम में यूँ समझ लो कि ये ऐसे है रूम पूरा, इसको मैं यहाँ से 2 में तकसीम करना चाह रहा हूँ, 2 में डिवाइड। तो मैं क्या करूँगा, इस रूम को मैं 2 में तकसीम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, ऊपर से एक पार्टीशन ला के ज़मीन तक लगानी है। अगर ये ऐसी है जैसे ये बीम है, इसको मैं नीचे लेके आऊँ ज़मीन पे लगाऊँ तो बहुत सिंपल है, एक ही अटैम्प्ट में पार्टीशन बन गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पार्टीशन कैसे बनती है, ये पार्टीशन सीधी नहीं होती, ये क्रीसेंटिक होती है ऐसे। यानी कैसे, ये मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, ये शुरू में ऐसे होती है जैसे आर्च होती है ना, ऐसे। ये ऐसे नहीं है जैसे बीम है ये हमारा, ये ऐसे है। यानी यहां से आर्च की तरह पार्टीशन को मैं नीचे उतार रहा हूं। अभी तो मैंने नीचे उतारा है कि अभी सिर्फ 20-25% ही बनी है, थोड़ा और नीचे करो, और नीचे आ गए 40-50%, और नीचे करते जाएं 60-70, और नीचे 80, और नीचे, बस यहां तक आ सकते हो। ये तुम्हारी पार्टीशन क्रिएट हो गई। आगे जहां मैं खड़ा हूं वो राइट एट्रियम, और इस पार्टीशन के पीछे लेफ्ट एट्रियम। क्या ये पार्टीशन कंप्लीट है कि क्रीसेंटिक होने की वजह से ये जब जमीन पे आके लगी है तो उसके बावजूद सुराख है इसमें? अगर ऐसी में करता तो नीचे सुराख नहीं होता, क्रीसेंटिक करने की वजह से यहां लग गई, नीचे सुराख रह गया। तो ये सेप्टम परफेक्ट है कि ये डिफेक्टिव है? तो ये डिफेक्टिव है। ये नेचर ने जानबूझकर डिफेक्टिव रखा है इसको। क्यों डिफेक्टिव रखा है? क्योंकि राइट एट्रियम में तो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा आती हैं, उसको तो यूज कर सकते हैं। अगर ये पार्टीशन शुरू से कंप्लीट होती ना, तो इसके पीछे जो लेफ्ट एट्रियम है वो मुकम्मल जुदा हो जाता और लेफ्ट एट्रियम यूजलेस हो जाता, वहां तो ब्लड ही नहीं जाता। क्यों? आप बोले से उधर तो 4 पल्मोनरी वेन्स आती हैं, अभी ये डेवलपमेंट हो रही है, अभी लंग बने ही नहीं है, तो 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आएंगी? तो इसका मकसद है कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल किसी काम का रहा कि वो बेकार हो गया। अगर वो बेकार हो गया, वहाँ ब्लड ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी लंग बने ही नहीं है, तो 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आई होंगी? वो भी नहीं, तो ये ज़ाया हो जाएगा, और जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो सकेगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपके हार्ट में रहेगा ही नहीं। अगर ऐसा किया आपने तो इसको ज़ाया ना करो, फिलहाल इसमें ब्लड को जाने दो। तो नेचर ने पूरी कंप्लीट सेप्टम क्रिएट करेगा कि वहाँ एक डिफेक्ट देगा, ताकि राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड लेफ्ट में भी जा सके, ताकि उसको भी ग्रोथ मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि अभी वो काम में नहीं आ रहा है, तो ब्लड उसको जाता रहे, ताकि उसको भी न्यूट्रिशन मिलती रहे, ग्रोथ होती रहे, उसमें भी डेवलपमेंट जारी रहे। लेकिन अगर ऐसा ही रहा और बच्चा पैदा हो गया और ये डिफेक्ट रह गया तो मसला हो जाएगा। फिर नेचर क्या करेगी? इसको बंद करेगी। अब ये देखें कंप्लीट हो गया कि नहीं? आप बोले सर अगर कंप्लीट हो गया तो फिर तो मेरा लेफ्ट एट्रियम गया काम से, उसमें तो ब्लड ही नहीं जाएगा। जब जब ये कंप्लीट होगा तब तक ये जो सेप्टम तुमने उतारा है, इसके टॉप पर छोटे छोटे सुराख जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर सुराख हो जाएगा इसके, फिर लेफ्ट एट्रियम काम में आना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम को विदाउट ब्लड नहीं छोड़ना है आपको, समझे? विदाउट ब्लड नहीं। वो इस्तेमाल ही तब होता है जब बच्चा पहली सांस लेता है, जब आता है बच्चा बाहर, वो 9 मंथ्स के बाद आएगा। अभी तो डेवलप तो करें ना पहले इसको आप। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक और सुराख यहाँ डेवलप हो जाएगा। अगर ये एक और सुराख यहाँ पे डेवलप हो गया तो फिर क्या समझते हो? ऐसे बच्चा अगर पैदा हुआ तो क्या ये सेप्टम कंप्लीट है कि डिफेक्ट हो गया इसमें? तो ये तो दिल में सुराख रह गया। फिर ये बाद में बच्चा पैदा होने के बाद तो ये नहीं बंद होगा फिर। तो नेचर क्या करेगी? ड्यूरिंग डेवलपमेंट इस सेप्टम से थोड़ा आगे यहां से एक और पार्टीशन उतारेगी। कैसे थी? ये देखो पहली पार्टीशन ऐसे आई थी ना, फिर उसमें ये भर गया तो ऊपर सुराख कर दिया। अब इस सुराख को भरने के लिए एक और पार्टीशन, एक और क्रीसेंटिक ऐसे उतारेगी जो इसके आगे से गुजरेगी। समझ गए? अब ये जो सुराख किया है तुमने पहले सेप्टम में, अब ये जो ऊपर से पार्टीशन ला रहा हूं
क्या वो सुराख तुम्हें नजर आ रहा है क्या? लेकिन तुम यहां ब्लड तो डाल सकते हो ना भाई, ये चिपके हुए नहीं है, ये इसके आगे है सिर्फ ऐसे। तो तुम अब तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम विदाउट ब्लड है कि ब्लड आता जाता रहेगा? समझ गए? अब तुमने पर्दा यहां रख दिया है सिर्फ। अब देखिए इसका फायदा आगे क्या होने वाला है, ये रख दिया है तुमने। तो सेप्टम जो है, इंटरएट्रियल सेप्टम, एक ही पर्दे से बनता है, एक ही सेप्टम से कि दो से? पहले कौन सा आया? ये जो छोटा वाला पर्दा मैंने लगाया आगे, ये जो अभी लगा रहा हूं, ये जो इससे आगे से गुजरा छोटा हाफ, ये हाफ वाला पहले आया कि पहले वो आया जो इसके पीछे है लंबा वाला? तो जो पहले वाला है इसको कहते हैं प्राइमरी सेप्टम, और ये वाला अभी आया वो सेकेंडरी सेप्टम। इसका ये लोअर बॉर्डर क्या है? क्रीसेंटिक, क्रीसेंटिक ऐसे कर्व में। तो शक्ल कुछ ऐसे बनेगी। देखिए ये प्राइमरी है, उसमें ये सुराख है, ये सेकेंडरी उतारा है मैंने, चिपकाया नहीं है, ऐसे ऐसे उतारा है। ठीक है, 9 मंथ्स गुजर गए, लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड में आते जाते होने की वजह से डेवलप हो चुका है, राइट एट्रियम भी डेवलप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने 4 पल्मोनरी वेन्स रिसीव कर लिए हैं, लंग से साथ कनेक्शन भी है, लेकिन लंग में अभी सांस गई नहीं है क्योंकि बच्चा अंदर सांस नहीं लेगा। तो वहां जो मौजूद ब्लड है वो भी वापस अभी आ नहीं रहा है। 9 मंथ्स गुजर गए, बच्चा आ गया। जैसे बच्चा पैदा होगा, बच्चा पहली सांस लेगा, बच्चे के दोनों लंग्स ऐसे फूल जाएंगे जैसे जहाज से छलांग लगाते हुए हमारा पैराशूट खुल जाता है। पैराशूट अगर नहीं खुला तो धड़ाम से जमीन पर बंधा गया, तो आते हुए पैराशूट खुल जाता है। और पैराशूट कब खुलेगा? जब बच्चा पहली सांस लेगा। अगर बच्चा डेड है, बच्चा लिविंग नहीं है, बच्चा डेड है, और तुमने एक्सरे लिया और उसके लंग में अभी एयर ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि बच्चा या तो डिलीवरी की दौरान डेथ हुई है या बच्चा जो है वो इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है। बच्चे ने बाहर आके सांस पहली ली ही नहीं है क्योंकि उसके लंग्स ऐसे ही कोलैप्स हैं जैसे इंट्रायूट्राइन लाइफ में थे, तो बच्चे ने पहली सांस नहीं ली। लेकिन जैसे बच्चा पहली सांस लेगा तो जैसे लंग फूलेंगे तो प्रेशर उधर इंक्रीज होगा, और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो 4 पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड है वो रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न करेगा तो अभी तो प्रेशर तुम्हारा राइट एट्रियम में ज्यादा था क्योंकि लेफ्ट में अभी ब्लड आया नहीं था, लेकिन जैसे ही लेफ्ट में ब्लड आएगा पहली सांस से तो लेफ्ट में प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे लेफ्ट में प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्राइमरी सेप्टम पर पीछे से दबाव आएगा, और जैसे पीछे से दबाव आएगा तो पहली सांस से ये हो जाएगा, ठक करके बंद हो जाएगा। बंद हो गया कि नहीं? अब बंद हो गया। अब वो जो आने जाने का रास्ता था अब खुला कि बंद? तो बंद। अब ये आपका रह गया क्या? ये 2 सेप्टा से मिलके एक इंटरएट्रियल सेप्टम बना, जिसके ऊपर का हिस्सा है सेकेंडरी सेप्टम और नीचे का हिस्सा है प्राइमरी सेप्टम। और ये जो ऊपर का हिस्सा है उसका लोअर मार्जिन है क्रीसेंटिक। उसका मकसद है कि उस क्रीसेंटिक से जो नीचे वाला है वो एरिया है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होगी कि नहीं? आप खुद अपने हाथ से बना लेना। ये देखिए, ये बीच वाला एरिया क्या है? डिप्रेस्ड। और जो बीच वाला एरिया है सीधा है कि ओवल लाइक है? तो इस ओवल लाइक इसको कहते हैं फोसा ओवेलिस, ओवल फोसा। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं इसको। तो दिस इज फोसा ओवेलिस। लाइट ऑफ करो, ये देखो इसको, ये देखें आप, ये है ग्रीन कलर का, ये क्या है? फोसा ओवेलिस। लेकिन ये देखें ऊपर, ये इसका क्रीसेंटिक ये है, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेप्टम है। उस सेकेंडरी सेप्टम का ये जो लोअर मार्जिन है, जिसने जो फोसा ओविलिस के ऊपर इस तरीके से है, क्या है? क्रीसेंटिक है कि नहीं? गोलाई माइल है या नहीं है? इस गोलाई को कहते हैं एन्यूलस। किसके ऊपर? किसके? कौन से फोसा के ऊपर? फोसा ओविलिस के ऊपर। इसलिए इसको कहते हैं एन्यूलस ओविलिस। एन्यूलस कहते हैं एन्यूलर को, राउंडेड को। एन्यूलस ओविलिस एंड फोसा ओविलिस। ये एन्यूलस ओविलिस क्या है? ये लोअर क्रीसेंटिक मार्जिन है किस सेप्टम की? सेकेंडरी सेप्टम की। और फोसा ओविलिस क्या है? ये डिप्रेस्ड एरिया है। किसने बनाई है? प्राइमरी सेप्टम ने। ये दोनों हैं। अगर लाइट ऑन कर, देखिए ये सेप्टम था ना, ये सेप्टम में सुराख था ना प्राइमरी में, अब क्या रहा कि बंद हो गया।
अगर तुम्हारा सेकेंडरी सेप्टम इतना बड़ा नहीं है कि ये इस सुराख को पूरा बंद कर सके, ये थोड़ा शॉर्ट रह गया, बंद हुआ है लेकिन सुराख रह गया कि नहीं, ये जो सुराख है इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो ये फोरामेन ओवेल बंद होने का सिलसिला हुआ कि थोड़ा खुला रह गया, किस वजह से? क्या फोरामेन ओवेल बड़ा था कि सेप्टम सेकेंडरी सेप्टम छोटा रह गया? यानी आपकी खिड़की तो उतनी है, पर्दा आपका थोड़ा छोटा रह गया और इससे रोशनी आएगी, तो इससे क्या आएगा? दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि दिल में सुराख है इसको। तो दिल में सुराख दरअसल क्या होता है? फोरामेन ओवेल परसिस्टेंट रह जाता है, इसको हम कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो ये इस तरीके से, ये छोटा सा है, एट्रियम के बीच में है, दोनों एट्रिया मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा ब्लड, लेकिन यह है कि अगर उसको आप छोड़ दोगे 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, ये थोड़ा सा भर जाएगा। ये सेप्टम जो है ना सेकेंडरी वाला, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। कोशिश करें, आप वेट करें, फौरी तौर पे सर्जिकल इंटरवेंशन न करें। ये ऑलमोस्ट थोड़े से होते हैं तो भर जाते हैं। भर का मकसद है कि सेकेंडरी सेप्टम नीचे आ जाता है, थोड़ा सा ग्रो कर देता है ज़्यादा, समझ गए? ये यहाँ है। या फिर सेकेंडरी सेप्टम तो तुम्हारा कंप्लीट है, फोरामेन अगर साइज में बड़ा हो गया तो फिर पर्दे का कोई कसूर नहीं है, पर्दा तो तुमने ठीक लगाया है, खिड़की जो है ना वो मिस्त्री वो बड़ी रख के गया है, तो इसका मकसद है कि वो पर्दा तो ठीक है, फोरामेन बड़ा है, तो इसका मकसद ये है कि ये बड़ा रह जाएगा। अब बड़ा रह जाएगा तो फिर ये उमूमन फिल नहीं होगा। फिर इंटरएट्रियल सेप्टम में ये डिफेक्ट होता है, अगर हो गया तो। फिर अगर हो गया तो हम इसको कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? एट्रियल। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दरअसल क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टम के बीच वाला सुराख खुला रह जाता है, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट फोरामेन ओवेल, दिल में सुराख, होल इन द हार्ट, और इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हम इसको कहते हैं ASD। ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जो पैदाइश के साथ होती है, ये पैदाइशी प्रॉब्लम है यहाँ। लेकिन एट्रियम में जो सेप्टम में डिफेक्ट होता है ये भर भी सकता है, इसलिए इसको फौरी तौर पे सर्जिकली नहीं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं इसको। हमने एक पेशेंट को ऑपरेट करवाया था, किस एज में? शी वाज एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, शी वाज हैविंग द होल इन द हार्ट। इंटरएट्रियल सेप्टम वाले लोग 42 साल तक भी ऑपरेशन न करा के जिंदा रह जाते हैं, चलते हैं, और उसके कोई 7 बच्चे भी थे। 42 ईयर्स में उसने जाकर ऑपरेशन कराई, और ऑपरेशन जब कराई तो 45 ईयर में उसकी डेथ हो गई, यानी ऑपरेशन के बाद उसकी 3 साल में डेथ हो गई। सारे हमें कोस रहे थे कि ऐसे ही चलती रहती तो शायद जिंदा रही, आपके ऑपरेशन की वजह से मर गया। हालांकि मरने की कोई वजह और थी, लेकिन आपको पता है ना, लोग मिक्स कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। वार्डों में आप जाएंगे ना, आपने देखा होगा NG ट्यूब वगैरह, वो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, कोमा में होते हैं, हम उनको NG ट्यूब डालते हैं। हम उनके अटेंडर से पूछते हैं, भाई ये हम NG ट्यूब डालेंगे, ये इसको आप कंसेंट दें। 90% वो बोलते हैं नहीं नहीं NG ट्यूब आप नहीं डालिएगा। भाई क्यों, क्या मसला है? NG ट्यूब ये तो डालना पड़ेगा, हमें सारे डोजेस वगैरह, ये वो सारी चीज़ें ओरली जो देनी है, कैलोरीज वगैरह, ये सारी कुछ हम इसी से मेंटेन करेंगे। बोले नहीं नहीं सर, वो पिछली दफ़ा मैं चचा को लेके आया था, वो चचा को रात को डाला, वो चचा सुबह को इंतकाल हो गया उस चचा का। अब वो चचा को इंतकाल हो गया क्यों? क्योंकि वो आया ही क्रिटिकल हालत में था, वो मेरे NG ट्यूब डालने की वजह से थोड़ी मरा था, मैं ना डालता तो शायद उससे पहले ही मर जाता। तो वो ऐसे उमूमन जो इलिटरेट होते हैं ना अटेंडर्स, वो ऐसे ऐसे कोरिलेट करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें डली हुई, ये इसको बड़ा प्रोसीजर समझते हैं। ये वार्ड वाइड डाल देता है, ये इसको बड़ा प्रोसीजर, वो समझते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसीजर वार्ड में हो रहा है, उसका नाक में नलकी डाल के उसको दूध डाल, ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये क्या बड़ा काम है? ये तो एक मामूली प्रोसीजर है। तो इसको बड़ी चीज़ समझते हैं, वो समझते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है, ये पता नहीं ये बचेगा भी कि नहीं, और वो होता ही क्रिटिकल हालत में। वो जाहिर इसमें जो 10-15-20% पेशेंट सुबह तक एक्सपायर भी कर जाते हैं। और फिर ये क्या समझते हैं कि किस वजह से हुआ है? ये आपने जो सर मैंने आपको मना भी किया था, ये हमारा दूसरा आदमी NG ट्यूब की वजह से मरा है, तो काज विल बी NG ट्यूब इंसर्शन। तो ये लोग ऐसे मिक्स करते हैं। लेकिन आप उनके जैसे उमन आते हैं ना, सर क्या है, बुखार के लिए आते हैं, वो बोलते हैं सर मुझे बुखार हो गया, सर मैं जब भी सखर से लौटता हूँ मुझे बुखार हो जाता है, जैसे काज सखर हो उसका बुखार का। तो ऐसे मिक्स कर, वो कहते, तो मैंने आप पहले भी बताया कि ऐसी बकवास ना सुना करें। आप सर उससे पूछें कि इस वक्त है क्या तुम्हें प्रॉब्लम, वो बोले बुखार है। ये नहीं बोलो कि सखर से रोज आता हूँ, तो तुम्हारी मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, कहीं से भी आ जाओ, तुम्हें बुखार है, होगा मलेरिया, वो बोलेगा सखर से आ,
जैसे ना मलेरिया को किसी ज़माने में लोगों ने बोला था बेड एयर की तरफ, ये बेड एयर नाम ही इसकी वजह से पड़ा हुआ है, मलेरिया। और अब जाके पता चला है कि ये मलेरिया बेड एयर, ये तो सर्दियों में भी हो जाता है। तो पहले बोलते थे गर्म एयर में होता है, जून जुलाई में होता है ये बुखार, और अब पता चला कि दिसंबर में भी होता है, क्योंकि असल काज बेड एयर नहीं, असल काज है मच्छर। एंड हियर विल बी, दिस इज इंटरएट्रियल सेप्टम। अब इंटरएट्रियल सेप्टम में ये सारी चीज़ें तुमने देखी, तो यहाँ जब राइट एट्रियम में पहुँचेंगे आप, तो आपको एक तो इंटरएट्रियल सेप्टम देखना है, 2 लैंडमार्क्स आपने देखे, उसके बाद वो 3 ओपनिंग्स देखनी है कहाँ कहाँ है, फिर आपने वो सल्कस टर्मिनलिस जो अब यहाँ क्रिस्टा टर्मिनलिस है उसके टॉप पर आपने वो देखना है, पेसमेकर बड़ा मशहूर जो सारी दुनिया में मशहूर है, वो पेसमेकर वहाँ जो बैठा हुआ है। ये राइट एट्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। ये ब्लड कलेक्ट करके अब तुम उसको फेंकने जा रहे हो, अब वो चौथी ओपनिंग है, वो दरवाज़ा जिससे ये ब्लड पुश हो जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो चल के देखो, ये राइट वेंट्रिकल के साथ दिखता है हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ही पंप करेगा, तो ये ब्लड जो होगा वो आएगा कहाँ, ये ब्लड आएगा हमारे राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी ट्रंक में। तो उस सुराख को देखने जा रहे हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस को, जहाँ से ये ब्लड राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल में जाने वाला है। ठीक है, चले देखें आप इसको। देखिए अब मैं वेंट्रिकल को, ये राइट वेंट्रिकल है, तुम्हें पता है इंटीरियर साइड से ये 50% से ज़्यादा राइट वेंट्रिकल है, इसको हम खोल रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ से देखो आ रहा है फ्रेम में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल देखें, अब ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब दोनों के मसल में फर्क देखें, दोनों का मायोकार्डियम देखें। इसका मायोकार्डियम, राइट वेंट्रिकल का मायोकार्डियम लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम के मुकाबले में 4 टाइम्स थिनर होता है, क्योंकि जब ये पंप करेगा तो ब्लड लंग में जाएगा, और लंग तो उसके पीछे ऐसे बैठा हुआ है, तो इसका मकसद है पंप में इतना ज़्यादा पावर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर जोर देगा ना, जब सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम 25, जबकि राइट वेंट्रिकल के अंदर तो ये 25 है। जब लेफ्ट में भी साइमल्टेनियसली पंप हो रहा होगा तो उसका जो मसल देखें इससे 4 गुना थिक है, और ये जो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करेगा वो इससे 5 गुना ज़्यादा होगा, लिटरली 5 गुना ज़्यादा। अगर इसका है 25 सिस्टोलिक तो इसका होगा 125 सिस्टोलिक, 125 नहीं, प्रिसाइसली 120, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जिसको आप कहते हो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर कहते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, ये तो ये ऊपर वाला है, ये है 120। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा एओर्टा में कितने प्रेशर के साथ, 120 के साथ, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। तो ज़मीन से अगर 6ठी मंजिल पे पानी भेजोगे तो तुम्हें 3 हॉर्स पावर की मशीन चाहिए, और घर में तुम 2 मंजिलों का आपका घर है, ऊपर से अगर 1 मंजिल का है, ऊपर से टैंकी लगी हुई है, तो हाफ हॉर्स पावर का सफिशिएंट है, हाफ भी बहुत है, पानी चढ़ जाएगा ऊपर। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि प्रेशर कम होता है। तो ये सिस्टोलिक कितना 25, तो साइमल्टेनियसली वहाँ सिस्टोलिक कितना 120, लेकिन जब खामोश हो जाएगा तो क्या ऊपर पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर का 0 हो जाएगा? नहीं, पल्मोनरी ट्रंक में कम हो जाएगा, प्रेशर कम होते 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 मैक्सिमम कम 8, कम से कम 8 होगा, और उधर कम से कम 10 गुना ज़्यादा 80 होगा, वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के मस्क्यूलेचर में 4 टाइम्स का फ़र्क है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो। अब सर ये है मेरा राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही कहा, ये है वो ओपनिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पेन देना, ये ओपनिंग है, ये जो पेन यहाँ आया है वेंट्रिकल से, बेटा उठाना है इसको, ये जो वेंट्रिकल से यहाँ आया है पेन एट्रियम में, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में भी जा सकता है। ये जो मैंने इस वक्त पेन दाखिल किया, ये वो ब्लड है जो राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ था, वो आ गया इस ओरिफिस से राइट वेंट्रिकल में। क्यों आया है? उसको पंप जो करना है। वो मैंने जब यहाँ आके देखा तो पता चला कि इतना मस्क्यूलेचर, और इससे ये, तो ये जो वेंट्रिकल होगा, ये जो वेंट्रिकल होगा, तो आपने यहाँ देखा कि उससे राइट वेंट्रिकल को जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीचे से वो खासा ब्रॉडर होगा, और जैसे जैसे ये आउटसाइड जाने की कोशिश करेगा, आउटलेट किस तरफ बढ़ेगा? पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। तो पल्मोनरी ट्रंक क्या है? चेंबर है कि वेसल है? तो जाहिर है वेंट्रिकल से तो थोड़ी नैरो होगी कि नहीं,
तो इसका मकसद है कि ये जो वेंट्रिकल है शुरू में वाइडर होगा और आस्ता आस्ता नेरोअर होता जाएगा, और नेरोअर होके कहाँ के खत्म होगा, पल्मोनरी ट्रंक पे। तो ठीक इस जगह पर सुराख होगा जो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ये चला जाएगा लाइक दिस आल्सो। तो इस सुराख को हम कहेंगे पल्मोनरी ओरिफिस। तो इसके कितने सुराख हुए, एक जो इसको एट्रियम के ब्लड को कलेक्ट करे और फिर जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको फेंक दे कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। तो एक ओपनिंग उधर होगी, उसका नाम होगा पल्मोनरी ओरिफिस, जबकि इसका नाम होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। कौन सा एट्रियोवेंट्रिकुलर, राइट के लेफ्ट, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, और ये पल्मोनरी ओरिफिस। तो ये पंप करके ऐसे आएगा, और जैसे पंप करके आएगा तो नीचे आपको पता है ब्रॉडर है, ऊपर क्या है, नेरो है। इस ऊपर नेरो पोर्शन को, आउटफ्लो जो नेरो होता है, इस आउटफ्लो को कहते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम, इसको इनफंडिब्यूलम कहते हैं। इनफंडिब्यूलम क्या है, नेरो आउटलेट ऑफ राइट वेंट्रिकल दैट गाइड्स यू इनटू, और ये इनफंडिब्यूलम कहाँ खत्म होगा, ओरिफिस पर। कौन सा ओरिफिस, पल्मोनरी ओरिफिस, और वहां से क्या शुरू हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक शुरू हो जाएगा। अब इसको अंदर से हम देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये वेंट्रिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट ब्लड रिसीव करने के बाद, ताकि ये भेज सके पल्मोनरी ट्रंक को, अगर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक वाले सुराख यानी पल्मोनरी ओरिफिस में जाएगा या एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस में भी जाएगा, कोशिश तो करेगा। क्यों, क्योंकि जब दो सुराख होंगे और तब तुम वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम ये क्यों समझते हो कि सिर्फ यहां जाएगा, यहां भी जाएगा। अगर कोई तीसरा सुराख होगा तो उसमें भी चला जाएगा। क्या जाना चाहिए, नहीं भाई, जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या जाना चाहिए इसको। ब्लड डिऑक्सीनेटेड है, जहां से आया था, गंदा पानी जो आ रहा है साफ होने के लिए, जब आप पंप करेंगे तो उसको आगे साफ करने के लिए भेजेंगे कि गंदे पानी को फिर वापस भी भेजेंगे, ऐसा तो नहीं ना करेंगे। लेकिन सुराख तो खुला हुआ है तो वापस जाएगा। तो सुराख पे नेचर ने एक दरवाजे लगाए हुए हैं, जैसे इस चौखाट पे ये दो दरवाजे लगे हुए हैं, वापस जाने की कोशिश जरूर करेगा, ऐसे नहीं कि नहीं जाएगा, वो तो ज़ाहिर है पंप करेंगे दोनों तरफ जाएगा। तो ये जो सुराख है, इस सुराख पे ज़ाहिर है वो ऐसे है, सुराख चौखाट लगी हुई है उस पर, इस चौखाट पे दरवाजे लगे हुए हैं, जैसे ये दो दरवाजे हैं, उस पे दो नहीं लगे हैं, उस पे तीन लगे हैं। वैसे तीन होते नहीं हैं, दो ही होते हैं, लेकिन अगर ऐसे गोल हो, ऐसे छत पे लगा हुआ हो गोल, तो वहां पर तीन ताक वाले दरवाजे लगाए जा सकते हैं। खड़े में तो तीन ताक वाला नहीं लग सकता, दो हो सकते हैं ऐसे गोल। अगर इस चौखाट को मैं ऐसे गोल कर दूं तो एक इधर, एक यहां और एक यहां, तीन लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, लग सकते हैं। और जब ये तीन लग सकते हैं और ये तीनों दरवाजे खुले हुए हों, तो ये खुले हुए कहां गिरेंगे, वेंट्रिकल में कि एट्रियम में। मैं एट्रियम में खड़ा हूं, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है, ये वेंट्रिकल में आ गया, दरवाजे खुले हुए हैं, तो वेंट्रिकल में खुले हुए हैं, वेंट्रिकल में गए हैं दरवाजे, एट्रियम में नहीं गए, वेंट्रिकल में खुल दे। कुछ दरवाजा ऐसे, ये दरवाजा जब खुलेगा तो क्लास के अंदर आएगा या कॉरिडोर में जाएगा, क्लास में अंदर आएगा। तो ये इस वक्त वेंट्रिकल में ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं। दो ताक हैं कि तीन हैं, तो हर एक ताक को कहते हैं कस्प। तो ये जो दरवाजा है दो ताकों का कि तीन का, बायकस्पिड के ट्राइकस्पिड, तो इसको ट्राइकस्पिड दरवाजा कहते हैं। ऐसे तो नहीं कहते, वैसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कहां गिरे हुए हैं, वेंट्रिकल में। अब ये मैंने बताया दरवाजा लगाया क्यों है, वेंट्रिकल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर, ऐसे जो जोर देगा तो वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो ब्लड पल्मोनरी की तरफ भी जाएगा, वापस भी आएगा इधर। लेकिन जब वापस आएगा तो यहां दरवाजे हैं, और जैसे वापस आने की कोशिश करेगा ये दरवाजे एट्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, माने सीधा बोलोगे बंद होंगे, तो ये ठक करके बंद होंगे, दो के तीनों ही। और जो तीनों बंद हो जाएं तो ये गोल जो चौखट है ये पूरी क्लोज हो जाएगी। तो ये जो वापस आने की कोशिश की थी, कामयाब हो पाएंगे कि कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब एक ही रास्ता है, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाने का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। रास्ता था ये पीछे,
लेकिन ये बंद हो गया। बंद हो गया, क्या आवाज़ भी आएगी? खुलने के टाइम पे आवाज़ नहीं आती है, दरवाजे को खोलो तो आवाज़ नहीं आती है, बंद होने पे आवाज़ आती है। इसको कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं? तो ये जो आपको स्टेथोस्कोप लगा के आप कहते हैं लब ठक करके ये बंद हो जाता है। कौन बंद होता है? ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड दरवाजा है। इसका क्या काम था? वो कहता है इसका काम था बंद होना। मकसद है कि इसका बंद होता है, लेकिन बंद होके ये क्या काम कर पाता है? वो हार्ट के उस ब्लड को वापस आने नहीं देता। क्या एक तरफ तो जाने देगा ना, या जाने भी नहीं देगा? उसको वापस आने नहीं देगा। ऐसी चीजें जो वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करें, रिटर्न न होने दें, ऐसी चीजों को वेल्व्स कहते हैं। जिसको वाल बोलते हो, ये वाल नहीं होता, ये वेल्व होता है, वेल्व। ये आपके मोटर और गाड़ियों के टायरों में भी ये होता है, जिसमें एयर अंदर जाती है। आप देखें, आप एयर पंप करते हो, एयर अंदर जाती है, वो जाके लौटती है क्या? नहीं, जिस नोजल से जाती है उसमें वेल्व लगा होता है, और जैसे अंदर से प्रेशर होगा ठक करके बंद हो जाता है। और जिसको बोलते हैं ना वो पंचर वाले, साइंस का वाल खराब हो गया है, बोलते हैं ना इसका वाल खराब हो गया। ये वाल नहीं होता है, ये वेल्व होता है, वेल्व। इसको वेल्व कहते हैं। ये दरवाजा है लेकिन ये है वेल्व। क्या बोलते हैं? तो ये जो वेल्व है, तो वेल्व वो डिवाइस होता है, एक्चुअली वो मैकेनिज्म है जिससे वन वे फ्लो होता है और उसको रिटर्न फ्लो रोकता है। वो रिटर्न फ्लो रोकेगा। तो अगर ये रिटर्न फ्लो में ये बंद हुआ और थोड़ा सा खुला रह गया ना, तो इसका मकसद ये डिफेक्टिव है, ये थोड़ा सा उसमें वापस चला जाएगा। और जो वापस चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये वेल्व डिफेक्टिव है। फिर क्या करना होगा? फिर अगर ये वेल्व डिफेक्टिव है फॉर एग्जांपल, तो फिर इसको ठीक करना होगा, वेल्व नया डालना होगा। हम कहते हैं कि वेल्व को रिपेयर करना होगा या उसकी जगह पे नया डालना होगा। इसको हम कहते हैं वेल्वुलोप्लास्टी। इसको कहते हैं वेल्वुलोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे उसको बोलते हैं। तो इसको नया वेल्व डालना पड़ता है। तो इसको कहते हैं इसका वाल खराब है, इसको उन्होंने ऐसे बोलते हैं ना, इसका दिल का वाल खराब हो गया, इसके 3 वाल खराब हैं, इसके 2 वाल खराब है। ये वाल नहीं होते, वेल्व्स होते हैं। हर सुराख पर एक वेल्व बिठाया हुआ है, और यह है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, जिससे वेल्व है, जिसमें कितने ताक हैं। तो इस वेल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं इसको। अब ये सवाल ये था कि ये वेल्व कब बंद होगा? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, यानी जब सिस्टोली होगी। और आपको पता है ना कि सिस्टोली के टाइम पर पल्स भी फील होती है। तो यहां तुम्हारा हाथ पल्स पर हो और यहां स्टेथोस्कोप तुम्हारा चेस्ट पर हो, तो अगर यहां पल्स फील हो और उधर पर फील हो लब, तो समझ लेना कि क्या बंद हुआ है उधर। क्यों? क्योंकि सिस्टोली के टाइम पर वो वेल्व बंद होता है ट्राइकस्पिड, और यही टाइम पर पल्स भी होती है। तो ये साउंड कब क्रिएट होता है? जब सिस्टोली होती है। और किस वजह से? ट्राइकस्पिड के बंद होने की वजह से। अब आप ऐसे क्यों समझते हो कि ये ऐसे ही बंद होगा? ये अगर बंद होना चाहे तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? ऐसे बंद होने से क्या ब्लड वापस नहीं चला जाएगा? फिर ये वाल काम का हुआ कि ये बेकार हुआ, ये खामखा बंद हुआ है, ये देखने को बंद हुआ है, ये बंद हुआ ही नहीं है, ये तो ओवर क्लोजर हो गया, तो खुल गया। इसका मकसद ये है कि इसको एट्रियम में जाना था या एट्रियम में नहीं जाना था। तो इसका मकसद है कि कोई इसको रोकेगा ना, तो नहीं जाएगा। ऐसे कैसे रोकेगा? तो हम क्या करते हैं, वेंट्रिकल, ये कब ऐसा प्रॉब्लम होगा? वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, नेचर ने क्या किया है, यहां पर लाइट ऑफ करो जरा। वेंट्रिकल का जो मसल है ना आपका, वेंट्रिकल का मसल जो सिस्टोली के टाइम पे कंट्रैक्ट होगा, और ये दरवाजे पीछे भी हो सकते हैं। तो यहां वेंट्रिकल के मस्कुलेचर से, ये देखिए वेंट्रिकल का मसल, वेंट्रिकल के मसल से कुछ मसल को उठा के ऐसे खींच लेता है। मतलब मसल है जिससे मसल से उठा के, यूं समझ लो कि मट्टी सा बना दें और थोड़ा सा मसल को खींच लें ऐसे, फिंगर लाइक। वैसे तो वाल बिल्कुल ऐसे है, आम सी मस्कुलेचर है, लेकिन यहां से उठा के ऐसे निकाल लें ये मसल को, फिंगर लाइक। एक नहीं, दूसरा भी, 2 नहीं, तीसरा भी,
तो वाल जो है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की, वहां से तुमने ऐसे क्या वहां उसको स्मूथ रखा कि वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उठा लिए 3। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं? अब जब ये पूरा मायोकार्डियम कंट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल का, तो ये पेपिलरी मसल ऐसे ही रहेंगे कि ये भी कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब इन पेपिलरी मसल्स का तीनों का डायरेक्शन है उस दरवाजे के इन 3 ताकों की तरफ। ये 3 पेपिलरी मसल क्यों दिए मैंने? क्योंकि दरवाजे का वाल्व के कस्प कितने हैं? 3 हैं। तो ये पेपिलरी मसल जाके किसको टच करेंगे? दरवाजे के उस कस्प को। ये दरवाजे के कस्प को टच नहीं करेंगे, उससे पहले खत्म हो जाएंगे। अब ये जब दरवाजा बंद होगा तो क्या पेपिलरी मसल इसको बंद होने से रोक सकते हैं क्या? जब टच ही नहीं करेंगे तो रोकेंगे कैसे? कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब कंट्रैक्शन होगी दरवाजा ऐसे एट्रियम की तरफ निकल जाएगा। पेपिलरी मसल ख्वाहिश तो होगी कि मैं रोक सकता शायद इसको, लेकिन रोक नहीं पाएगा। फिर नेचर ने क्या दिया है? इसको रोकना था, नेचर ने पेपिलरी मसल के सिटाप पर धागे दे दिए, धागों की तरह। ये देखें आप, ये पेपिलरी मसल है और इस पे छोटे छोटे ऐसे धागे दिए हैं। ये कस्प को पकड़ के रखते हैं। ऐसे धागों के कितने बंडल्स होंगे? 3। और हर बंडल जो है वो किसको पकड़ेगा? एक एक कस्प को। अब मुझे बताओ, जब राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो ये पेपिलरी मसल ऐसे होंगे कि ये भी कंट्रैक्ट करेंगे, तो उन धागों पे खिंचाव आएगा कि नहीं? और इसका असर किस पे पड़ेगा? कस्प पे पड़ेगा। और कस्प क्या कर रहे थे? बंद हो रहे थे, बंद हो रहे थे, एट्रियम की तरफ जा रहे थे। क्या आप जा पाएंगे? क्या ये इस तरीके से बंद होंगे? और जा नहीं पाएंगे। जा नहीं पाएंगे तो ये प्रॉपरली क्लोज हो जाएगा। ये जो है ना इस वक्त यहाँ पर, ये मसल नहीं है, ये क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू है। जैसे मसल के एंड पे होता है टेंडन्स, तो ये भी टेंडन्स हैं, इनको भी टेंडन कहते हैं। ये आम टेंडन की तरह मोटे हैं कि धागों की तरह हैं, तो इसको कहते हैं कॉर्ड्स, धागे। ये टेंडन्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्ड लाइक टेंडन्स, धागों जैसे टेंडन्स। इसलिए इनका नाम पड़ गया है कॉर्डा टेंडनी। क्या बोलते हैं इसका? कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी किसको पकड़े हुए हैं इन्होंने? पेपिलरी मसल्स के टॉप्स को। और ऊपर किसको पकड़ा हुआ है इन्होंने? कस्प को। और ये कस्प को क्या करते हैं? ये कस्प को प्रॉपरली क्लोज होने देते हैं, इनको एट्रियम में भेजने नहीं देते। अगर एट्रियम में चले गए तो फिर सुराख हो जाएगा, फिर ब्लड वापस चला जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कितने हैं? आप बोलेंगे 3 पेपिलरी मसल्स हैं। इनके टॉप पर जो धागे लगे हुए इनका क्या नाम है? कॉर्डा टेंडनी। ये कॉर्डा टेंडनी किसको पकड़े हुए हैं? कस्प को। फंक्शन इनका क्या है कि सिस्टोली के टाइम पर पेपिलरी कंट्रैक्ट करें, इनमें खिंचा हुआ है और कस्प को एट्रियम में रिटर्न न होने दें। इसको यहाँ पे हम कहते हैं कॉर्डा टेंडनी। ये है आपके राइट वेंट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। क्या ये राइट वेंट्रिकल ऐसे ही बैठा हुआ है कि इस तरफ देखेगा लेफ्ट पे तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल भी है? क्या ऐसा ही है कि बीच में पार्टीशन है? उस पार्टीशन का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मुझे याद दिलाएंगे आप अगली क्लास में कि मैं राइट वेंट्रिकल से आगे चलूँगा और इसको पंप करके मैं पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजूंगा, और ठीक इस राइट हार्ट को मैं कंपेयर करूंगा लेफ्ट हार्ट से। सिमिलर चीज़ें वहाँ भी होंगी, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स, कुछ डिफरेंसेस के साथ होंगी। सेम प्रेशर डिफरेंट होंगे, थोड़े से स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। वही होगा कस्पिड वाल्व, लेकिन उसके ऐसे ही होंगे जैसे तुम्हारे कमरों के 2 ताक होते हैं, वहाँ 2 ही ताक वाला होगा, बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे उसको। और इसी तरीके से फिर आगे से वही होगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर नैरो चेंबर, नैरो पैसेज होगा, फिर एओर्टा आएगा। तकरीबन सेम आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, थोड़े डिफरेंसेस के साथ। तो इंटरनल फीचर्स आप हार्ट के समझ पाएंगे, और कुछ और चीज़ें मैं इसके साथ डालता हो जाऊंगा। उसके बाद बाहर उसकी ब्लड सप्लाई दिखाऊंगा, तो हार्ट कंप्लीट होगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। लाइट ऑन करो, लाइट।